Am I audible? या सो राजेंद्र भाई, आपने आईटी कंसल्टिंग पे काम किया, राइट? मैं Yes. ओपन करता हूं आपका पूरा डेटा, लेट अस गो थ्रू। ओके, सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें के बारे में आप बता सकते हो जिसकी आपको जानकारी मिली, जो आपको लगा वाओ ये चीज की जानकारी सबको होनी चाहिए। आईटी कंसल्टिंग में अमेजिंग क्या लगा पूरा जब डेटा का एनालिसिस कर रहे थे तब? या कंटिन्यू। IT कंसल्टिंग में जो नंबर ऑफ कंपनीज, एक तो those are listed. So if you, I think 82 companies are there, small, all kind of segment, राइट, and 82। yeah. So and majority of those are like top 10. I think top 10 are the like contributing approximately 90% of the market cap. ओके So that also, so like we were focusing on some small company while doing the trading or for ओके positional trading, but after looking into it, we'll come to know that we need to focus only top 10 if you want to create a wealth. So that is what, and these top 10 companies are just like if you see the like past record up from 2000 to 2001 also, it is like keep on growing. So I have करेक्ट not considered like 20 years data here, but last या 4 years data also, if you can see, like we can see like it is continuously growing, and like from top 10, like it was very small at the time of 2000 2010, like when they have, but after that it grown like, and yeah, like initially it was like, because I'm in IT field also, so I know that earlier it was just like this sector is not a like core sector kind of thing. Now it राइट became a like core sector. So that is so, and increasing the company as also, like there are initially it was very small in number in करेक्ट like 2000. So as like sector grows, I think you can see multiple companies come into and play a role. So that is also one of the indication to like growing industry and all. So राइट those that I could see. Okay, so you are absolutely correct. Now see here we can see an error, and that is a permanent error, Rajendra bhai. In the case of Infosys and Wipro, the market cap which you are looking is wrong, right? So this is permanent error which we see. Both of these companies' market cap, which will reflect here, which will come automatically, will be wrong permanently. So what we should do? We should go to BSE India, just check what is the market cap of Infosys. For example, I have written here Infosys. Here I got the market cap. It's 7,18,148. I have copied, right? Came to your data, and now, okay. I just want 7,18,000 crores. So let me do it like this. Let me copy this data. I think Base there is spatial something well wrong while 7.2, right? So see why I have written manually, because every time you will see this spreadsheet, whenever market will get close, this two data will get wrong. TCS and Infosys. why it is so? So this is Because permanent error. when I like See, in execute, like many, when I prepare it was right. yeah, because you have prepared when market was open, right? Now every time when you will see at night, this will change, right? So only in these two companies, Infosys and Wipro, we will have to be prepared that this is a permanent error, right? So just write down this Wipro market cap also. Let me check. It should be around.
just like your Infosys, little bit lesser. Okay, 362. So what I will do, I am not going to write down exact. I just took market cap of Infosys and I am writing down what was here, 363, 363, right? So this is now your real numbers, right? So what we can do, another thing, Rajendra bhai, here you do not have market cap of these all companies. Why? Yeah. Because I tried with NSE as well, Bombay Stock Exchange also, but could not find it. Then I have to do it manually in that Okay, case. no problem. What we will do, I will just delete it, right? We do not need data of these all companies. See, let me show you an example. I am going to this, your first one companies, ADJIA, right? Let me write down here, AD. I heard this company for the first time when I Yeah. was. So see, I have just, okay, now this company is with me. Let me check it. What is the market cap? Yeah, 2.51 crore. 2 crore. Nothing. Nothing. So it will make no difference. Even Yes. I put all of these companies together. 2 crore, 3 crore, 5 crore is nothing, right? Yeah, And if yeah. you will check their sales also, let me go to their sales. See, this is their sales, 22 lakh. Now, do we want to invest in the companies which are just doing 22 lakh? In IT, like this is a one person's salary for entire year. Yeah, absolutely. So why to go with this type of companies? It's all right. If they are not having data, we are happy. No need to see these all companies, right? Now let Okay. me check the whole data. Okay. So see, here we are. Okay. Right. So here is TCS, Infosys, and these all some of the largest companies in your world. Now, why there are so many companies, Rajendra bhai, in IT consulting software? Because industry is growing first of all, Yeah. and profit margins are like very high in Correct. IT. Correct. And like we are getting more demand from outside of the country, so dollar rate play important role. Right. So see, So, this sector is growing. Too many people want to enter in this sector, and that's the reason there are too many companies. And many companies are getting listed every year from this sector. So you are going to see another 20, 25 companies in next 5 years in this sector, right? Now, yes, now see, this is the perfect data of your sector. This is the real market cap. How much? it is 33 lakh 33 crore. lakh crore. Right? Yes. So that's the real market cap. 33 lakh crore means, see, in a normal case, whenever anybody will discuss about IT, they will say that IT is responsible for 10% GDP in India. It was nothing 2 decades back. But today they are Yes, yes, responsible for 10% GDP. See, you can see in market cap also. Same thing. yes, that's true. Right? Correct. So this is true data that yes, they are responsible for 10% of total GDP. And we can see the largest companies like TCS. So see, in your data, I can explore one more data that TCS is the largest company among all. Am I right? Yes. 1.6 Correct. lakh crore. Barabar na? Yes, yes, yes. So see, I will urge everyone to focus on this data. See how we can see that the total of all of these companies tells me that they are together doing around 5 lakh crore sales. On the sales of 5 lakh crore, how much market cap they are getting? Almost 7 times. 33 lakh crore. So that's too high. So why they are getting so much high market cap? Let me convert into number, right? So they are getting almost 7 times. Now in India, people are saying कि market cap और GDP एक जितना हो गया तो इंडिया बहुत महंगा हो गया है. So in the case of IT, what should they say? IT's market cap is 7 times to their sales. तो IT महंगा हो गया? ऐसा नहीं है दोस्तों. The more people will feel secure, the more quality sector, the more market cap you will see. And the low security you will see in any sector,
companies would be making losses, there would be no growth, you will not see such premium. So here in the case of IT, we are seeing 7-time premium, right? So this also tells us that yes, IT industry is a good industry. See, the companies are growing by around 10%, right? So 10% is good growth. What do you say, Rajendra bhai? 10% CAGR, right? Yeah, 10% 10% CAGR is a good growth. If you compare to GDP, it is average. I mean to say, like, because we have like 8% like, yeah, as part of the GDP now growth. see, your So, India is growing by 8%, and the sector which we are discussing is growing by 10%. So what can we say? That this sector is outperforming India, underperforming, or equal to India? Outperforming, sir. Yeah, we can say they are outperforming. If the growth is similar to 8%, we can say they are similar to India. And below 8% growth, we can say underperforming, right? In this case, we can say IT is an outperforming sector. See, the companies you have, as per your data, they are growing by 10%, 10%. Wipro is having lesser growth, right? Comparing to other. And see, that is the reason here in the case, you will see TCS with the sales of 1.6 lakh crore. They are getting market cap of 14 lakh crore. Can anyone tell me how much multiple market cap TCS is having if we compare it with sales? कितना गुना ज्यादा है मार्केट कैप TCS का? क्या अप्रोक्सीमेटली? देखो, डेढ़ लाख करोड़ का धंधा, ओके समझ गया मैं, और 14 डिवाइड बाय 1.6, कितना गुना मार्केट कैप मिल रहा है? 9 टाइम्स, है ना? क्यों इतना 9 गुना मार्केट कैप मिल रहा है? यू कैन चेक विप्रो का कितना है मार्केट कैप? 3.5 लाख करोड़ का धंधा कितना है? 60, करीबन 5 गुना मार्केट कैप। विप्रो को क्यों टीसीएस से कम मल्टीपल मिल रहे हैं? राजेंद्र भाई कुछ बता सकते हो इसके ऊपर? yeah, means dividend yield is also high in case of our. That's what I have seen so far. ओके, देखो अभी हमने क्वालिटी एनालिसिस नहीं किया है राजेंद्र भाई, राइट? कि जिससे हमें पता चले कि सही में क्वालिटी में कौन अच्छा है, पर इतना क्लियर हो रहा है कि टीसीएस को ज्यादा मल्टीपल मिल रहे, विप्रो को कम मिल रहे। जनरली ऐसा कब होता है? जब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो। अब ग्रोथ देख के क्या कहते हो, कौन अच्छा बढ़ रहा है, टीसीएस की विप्रो? किसका ग्रोथ हाई है? टीसीएस। तो जो ग्रोथ बढ़िया करेगा उसे वैसे भी अच्छा मल्टीपल मिलेंगे। इन्वेस्टर को ऐसी कंपनियों पे भरोसा रहता है कि ओके, आज मैं इन्वेस्ट करूंगा टीसीएस में, TCS is making 1.5 lakh crore turnover, they would be able to grow to 5 lakh crore market turnover, बराबर है? So this is the way we can interpret. अभी हमें ये डिसीजन पे दोस्तों नहीं आना है कि मुझे कौन सा कंपनी बाय करना है। ये डेटा एनालिसिस करने का हमारा पर्पस है, हम जाने कि कौन सा सेक्टर ग्रोइंग। तो क्या मैं आईटी को ग्रोइंग सेक्टर में रख सकता हूं? Yes, absolutely. Definitely. So yes, IT is a growing industry. सर एक मिनट सर, राजेंद्र भाई आपके साइड से थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तो जब आप मैंने आपको म्यूट किया है, अगर आप बोलना चाहे तो आप अनम्यूट कर सकते हो। राइट या चिंतन भाई, सो यहाँ पे एक चीज हमारा क्लियर हो गया है कि आईटी कंसल्टिंग का जो हमने 2 कंपनी का डेटा अपडेट किया, तो देखो बैंक से बड़ा हो गया, राइट? सो दिस इज रियल, ये रियल पिक्चर है। 33 लाख करोड़ आईटी, 10% से ये 3 साल से बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि
सबसे बढ़िया रैली भी आईटी कंसल्टिंग ने ही किया है। गुड रिटर्न बाय आईटी कंसल्टिंग कंपनीज। इस साल ये कंपनियां 6% से बढ़ी है। सो जस्ट इमेजिन, ये साल तो जीडीपी माइनस होना चाहिए, तो कितना डाइवर्जेंस है। इंडिया -7.5 और आईटी +6। सो योर डाइवर्जेंस करीबन मैं यहाँ पे कहूंगा 12% से जीडीपी 12% से आउट परफॉर्मेंस हुआ आपके आईटी का, राइट। तो प्री आईपीओ भी, सॉरी प्री कोरोना भी आईटी वाज ग्रोइंग बेटर, and post corona even this year IT is growing better than India, right? And here also I can see बढ़िया डेटा राजेंद्र भाई ने दिया। TCS Infosys दोनों के ग्रोथ के डेटा भी बताए। सो वंडरफुल, राइट। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स, मैं नेक्स्ट सेक्टर पे आता हूं। जैसा मैंने बात किया कि बैंक पे हम बाद में चर्चा जरूर करेंगे भरत भाई से। वी विल मूव टू जावेद पटेल। या जावेद भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या तो जावेद भाई, आपने इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस पे काम किया है। लेट मी ओपन इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस एंड लेट मी टेल पार्टिसिपेंट्स आल्सो कि थोड़ा ध्यान रखिएगा जो डेटा पे आप लोग बात कर रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों के हैंड रेस देखे हैं, पर अभी जो कि कोई चीजें हमने इतनी डिस्कस ही नहीं की है, तो मैं चाहता हूँ कुछ टाइम पेशेंस रखें। हो सकता है जो आपके मन में क्वेरी है वो भी क्लियर होने वाली है, पर मैं एक एक करके आप लोगों से बातचीत करता जाऊंगा आपकी क्वेरी पे भी, राइट। सो लेट मी टॉक विद जावेद भाई। यस जावेद भाई, कैसे हो? बस बढ़िया सर। तो ये सेक्टर पे जब आपने एक्सप्लोर किया इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस, क्या Yes. अमेजिंग जानकारी मिली? सबसे पहला तो ये मिला सर कि मतलब इतना बड़ा इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो सारा का सारा रिलायंस के पास ही, 80-90% तो रिलायंस के पास ही है। राइट, तो दूसरी सारी कंपनी का तो मतलब कोई कंपटीशन जैसा लगता ही नहीं कि कुछ है। बराबर है। तो मतलब ये अगर हम माने जावेद भाई कि इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस एक बड़ा सेक्टर है, तो वो गलत बात है। ये बड़ा नहीं है, वो तो उसमें एक कंपनी है जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा मार्केट कैप मिल रहा है, राइट। अब रियल में रिलायंस को क्यों इतना बड़ा मार्केट कैप मिल रहा है और वही सेक्टर में दूसरी इतनी सारी कंपनियां हैं उनको नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों जावेद भाई? ऑब्वियसली एक तो ट्रस्ट फैक्टर है और दूसरा अच्छे सीएजीआर से वो ग्रो कर रही है, इसीलिए 23% का कगार से बढ़ रही है। हाँ। ओके, अब ये जो यहाँ पे आपने जो डेटा लिखा है सेल्स ग्रोथ उनका 6 लाख करोड़, राइट। ये 6 लाख करोड़ में रियल में इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है पता है आपको? नहीं सर, वो नहीं। ओके, तो वो जानना हो तो कैसे जान सकते हैं? वो कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन में आई थिंक देखना पड़ेगा सर। या कंसोलिडेटेड में ही मिल जाएगा। देखो, या तो हम क्या कर सकते हैं, ओके मैं यहाँ पे रिलायंस लिखता हूँ। ओके ओके, so here is Reliance Industry। मैं इनके रिजल्ट्स में गया, एनुअल ट्रेंड्स, राइट। देखो, ये इनका जो रिजल्ट है 2.5 लाख करोड़ का जो धंधा देख रहे हैं हम लोग, ये कौन सा है दोस्तों? स्टैंड अलोन है, राइट। तो ये रियल कंपनी का जो टर्नओवर है वो है, इसमें कंसोलिडेटेड ऐड नहीं हुआ जो उन्होंने दूसरी सब्सिडरीज और बाकी कंपनियों का, राइट, इंटरनेशनल मार्केट या कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड पे क्लिक कर रहा हूं तो जावेद भाई ने जो डेटा बताया कि 6 लाख करोड़ का धंधा, या पिछले साल का तो कम था 4,86,000 करोड़ का धंधा, तो देखो ये आ गया। तो उनका डेटा बिल्कुल सही है, पिछले साल का धंधा है 4,86,000 करोड़। अब नीचे एक सेगमेंट दिख रहा है जावेद भाई। यस सर। मैं सेगमेंट को क्लिक कर रहा हूं तो मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि कितना धंधा किधर से आ रहा है, ओके राइट। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भी हमारे अलग अलग धंधे हैं, जिसमें से एक बिजनेस आता है ऑयल टू केमिकल। तो ओटीसी का कितना कंट्रीब्यूशन है? मैक्सिमम इतना, राइट। 2.25 लाख करोड़ ओटीसी में से आ रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज नथिंग, 1000 करोड़। डिजिटल सर्विसेज 960 1000 करोड़, राइट। ऑयल एंड गैस
29 791, रिटेल 102, राइट। अब ये 102 ये क्या है? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो धंधा है वो ही है सर। या आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से हमें सेगमेंट मिल गए सब कि वो Okay. कौन से धंधे में है। देखो रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, ऑयल एंड गैस है, राइट। यस सर। तो सेगमेंट का रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए, लेकिन अब असल में इनका धंधा कितना है अभी हमने देखा। 4,86,000। या मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड में चला जाता हूँ, तो अभी मेरे को यहाँ से डेटा नहीं मिल रहा है, राइट। जस्ट अ मिनट, लेट मी रीचेक इट। ओके, राइट। तो यहाँ पे जो सेगमेंटल रेवेन्यू दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि सारे डेटा नहीं है यहाँ, मैच नहीं हो रहा है फिगर सर। जो टोटल भी जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है खाली 3 लाख करोड़ का। असल में इनका धंधा कितना है? 4,86,000। या ये तो, हाँ, ये कब का आ रहा है? 21। राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसका थोड़ा डीप रिसर्च करना पड़ेगा जावेद भाई, अगर हमें सही में जानना है कि सेगमेंटल रेवेन्यू क्या है। तो अभी हम नहीं करेंगे, ये हमें रिजल्ट में जाके देखना पड़ेगा, बट वी कैन चेक इट, राइट। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कंपनी को जो टर्नओवर आ रहा है वो 50% टर्नओवर हम ऑयल, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस से कह सकते हैं, राइट। 50% कंपनी का बाकी जो टर्नओवर आ रहा है वो दूसरी सब अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, राइट। कंपनी को करीबन ये जो कंपनी का टर्नओवर आपने बताया 5 लाख करोड़, इसमें 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रिटेल से आ रहा है, मतलब उनके जो डिपार्टमेंट स्टोर है वहां से, राइट। कितना? 1.5 लाख करोड़, करीबन 1 लाख करोड़ जियो कर रहा है। तो क्या ये दोनों भी ऑयल एंड गैस में आते हैं? नहीं सर। तो इनको जो रियल ग्रोथ जो मिला ना वो ऑयल गैस से नहीं मिला है, वो किधर से मिला है? रिटेल और दूसरे सोर्सेज जो इमर्जिंग इंडस्ट्री के वहां से। तो हमें ये जरूर डेटा बता रहा है कि भी रिलायंस इज ग्रोइंग बाय 23%, बढ़िया ग्रोथ है। पर ये हम मान के चलेंगे कि ये इंटीग्रेटेड ऑयल का ग्रोथ है तो बिल्कुल गलत बात है। तो सर इसमें हम स्टैंड अलोन डेटा पे लेना पड़ेगा सर। नहीं, आपने जो लिया बराबर ही है, कंसोलिडेटेड ही है, लेकिन ये एक एरर है जो हमें जाननी पड़ेगी कि ये इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस का टर्नओवर नहीं है, ये रिटेल, डिजिटल, इन सब का टर्नओवर की वजह से रिलायंस का ग्रोथ दिख रहा है। तो हम इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस को ग्रोइंग नहीं मानेंगे, राइट। ये जरूरी नहीं है ये सेक्टर ग्रोथ कर रहा है या इसका इतना बड़ा मार्केट कैप है। अगर रिलायंस खाली ऑयल और गैस में होती तो उसको इतना मार्केट कैप भी नहीं मिलता और इतना ग्रोथ भी नहीं करता, राइट। ग्रोथ किधर से मिल रहा है? उन्होंने भी जाना जावेद भाई बरसों पहले कि भी अभी हमें अगर ग्रोथ करना है तो हमें कुछ और सेक्टर में पैसा लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग इंडस्ट्री चेक, राइट। तो आप यहाँ पे, मैं अभी वापस यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ, आप यहाँ पे जरूर कह सकते हो कि भी आपने इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस लिखा हुआ है, हम मानेंगे दिस इज थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर, हम ये भी मानेंगे दिस इज ग्रोइंग, बट दिस इज एन एरर। हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ऑयल एंड गैस ग्रो कर रहा है 22%, राइट। तो एक डाइवर्जेंस हुआ यहाँ पे, बराबर। यस सर। तो ऐसी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर एरर आ जाएगी, डेटा एक्यूरेट नहीं बनेगा। या तो ये हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि रिलायंस इज ग्रोइंग, और रिलायंस अभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस क्यों बता रहा है जबकि रिलायंस का धंधा दूसरी जगह से भी आ रहा है? क्योंकि जब तक उनका दूसरे बिजनेसेस ये बिजनेसेस से बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक ये इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस में ही रहेगा। ये हो सकता है जावेद भाई कि आप 1-2 साल में देखो तो ये सेक्टर बदल जाए और वो डाइवर्सिफाइड नाम का एक सेक्टर किसी ने देखा था? देखो ये रहा। यस सर। देखो मैं डाइवर्सिफाइड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन सी कंपनियां मिलती है? ऐसी कंपनियां मिलती है जिनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, मतलब अलग अलग जगह पे काम है, राइट। जैसे यहाँ पे डेल्टा है, तो डेल्टा को आप कोई एक सेक्टर की नहीं कह सकते हो, कसिनो से बिजनेस आता है, उनके रिसोर्ट से बिजनेस आता है, लेजर की भी कंपनी हुई, राइट। गेमिंग में भी है,
तो ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है, रिलायंस भी डाइवर्सिफाइड है, पर अभी उनको 50% धंधा ऑयल एंड गैस दे रहा है, इसलिए वो ऑयल एंड गैस बता रहा है। डन? यस सर। ओके, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब भी हम डेटा एनालाइज करते हैं, डेटा के साथ कुछ और चीज भी हम जानकारी रखेंगे आने वाले समय में, राइट? ओके, तो हम तैयार है कि रिलायंस ऑयल एंड गैस से बाहर निकल जाएगी इंडस्ट्री में से, और वो कोई और इंडस्ट्री में मिलने वाली है। ओके, यस लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्टर, राइट? हम यहाँ पे मान रहे कि आईटी इज ग्रोइंग, पर यहाँ पे हम नहीं मान रहे कि ऑयल एंड गैस इज ग्रोइंग। तो जब भी हम लिस्ट बनाएंगे हमारा डिमांडिंग इंडस्ट्री का, उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? So now let me move with Mr. Debashish Ghosh. Yeah, Debashish ji, you can unmute yourself. Yes, sir. Yeah. Good evening, so, good evening. So आपने काम किया है फार्मास्यूटिकल में, राइट देबाशिष जी? आपका जो ये सेक्टर है वो एज पर योर डेटा दिस इज 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, राइट? इनका मार्केट कैप में ये इंडिया के चौथे है, पर अगर मैं इनके सेल्स देखूं तो सेल्स में ये थोड़े नीचे आ जाते हैं, राइट? सेल्स में इनका नंबर कौन सा है? देखो, 6ठा है। पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि फार्मा इंडिया के टॉप 10 सेक्टर में गिना जाएगा इन द टर्म ऑफ मार्केट कैप हो या सेल्स हो। एम आई राइट सर? चलो, तो अभी हम फार्मा का ऑपरेशन करते हैं। लेट मी ओपन फार्मा। आपने डेटा दिया कि दे आर ग्रोइंग बाय 10%। इफ दे आर ग्रोइंग बाय 10%, दैट्स गुड एंड फाइन। पिछले साल भी इनका ग्रोथ 7% था, राइट? तो अगर कोरोना की लपेट में फार्मा नहीं आया, इसका मतलब कोरोना में धंधे डाउन हुए पर फार्मा का ग्रोथ हुआ, राइट? लेट मी ओपन इट। क्या क्या जानकारी मिली देवाशीष जी, तो आपने ये पूरे सेक्टर का एनालिसिस किया? सर, सेक्टर का जो बड़ा कंपनी है सन फार्मा, या सेल्स तो बड़ा है, मार्केट का भी बड़ा ही दिखा रहा है, लेकिन उससे बहुत ही छोटा कंपनी डिविस लैब है, उसका सेल्स बहुत ही कम है, लेकिन उसका मार्केट का बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सन फार्मा का बहुत डेप्थ है और डिविस लैब का आईसीआर बार डेप्थ आईसीआर बहुत ही बड़ा है और डेप्थ भी बहुत ही कम है, राइट? इसलिए देखो ये मार्केट कैप, राइट देवाशीष जी, यहाँ पे बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। एक चीज तो यहाँ पे दूसरी एक एरर देख लो कि डॉक्टर रेड्डी का मार्केट कैप गलत आ रहा है, जैसा हमने अभी इंफोसिस में देखा ना, ये सेम केस है। तो या फार्मा में डॉक्टर रेड्डी एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप हमेशा इधर गलत बताने वाला है। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा सही मार्केट कैप लाने के लिए? सेम स्ट्रेटेजी, एक बार डॉक्टर रेड्डी में जाके यहाँ पे हमें लिख देना पड़ेगा, राइट? नहीं तो हमें गलत ही रहेगा। तो दिस इज परमानेंट एरर। कितना है? 82,000 करोड़, राइट? तो 82,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो मैं इसको सिप्ला का जो मार्केट कैप है 76,000 का, यहाँ पे गया और मैंने खाली वैल्यू कॉपी कर दी और यहाँ भी लिख देता हूँ सिप्ला के 82, राइट? तो देखो अभी ये सही है, राइट? अब यहाँ पे देवाशीष जी देखो, क्या कहिए आप, कहिए क्या कह रहे हो? जो आप चेंज किया है, हाँ, तो वो क्या परमानेंटली ऐसे ही रहेगा ना कि सर हर डे उसको चेंज करना पड़ेगा? हाँ, अभी ये परमानेंटली ये 82,000 करोड़ ही रहेगा, भले कल डॉक्टर रेड्डी 1 लाख करोड़ आ जाएगी, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज द परमानेंट एरर। मतलब फार्मा सेक्टर में एक कंपनी का मार्केट कैप गलत ही दिखेगा। तो जब भी आप चेक करो लेटेस्ट डेटा, यहाँ पे आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो इतना सब तो हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है, पर कुछ जगह पे अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, राइट? ओके सर। अब देखो यहाँ पे कितने एक बढ़िया मेरे को इंफॉर्मेशन मिली आपके डेटा से, या एवरीबॉडी फोकस कीजिएगा यहाँ पे। दिस इज अमेजिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? एक कंपनी है सन फार्मा नाम की, जो सबसे बड़ी है,
जस्ट लेट अस सी, सबसे बड़ा धंधा करने वाली कंपनी कौन है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में मतलब फार्मा वर्ल्ड में कौन है यहाँ पे? सन फार्मा। दूसरे नंबर की कंपनी है औरो फार्मा, सिप्ला तीसरी, डॉक्टर रेड्डी चौथी, लुपिन पांचवी। तो अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी 5 कंपनी बताओ मेरे को फार्मा की, तो वो कौन है देवाशीष जी? 5 लार्जेस्ट कंपनीज? सन फार्मा और औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन। Absolutely right. So you know that Sun Pharma is the largest company as per sales of India. लेकिन डाइवर्जेंस क्या है यहाँ पे? एक बड़ा डाइवर्जेंस देखो कैसे। ओके, अभी मैं करता हूँ, अभी हो जाएगा। ओके, सो देखो इधर कि सन फार्मा का धंधा 34,000 करोड़ और मार्केट कैप 1.8 लाख करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। ये जो कंपनी है डेविस, इसका खाली 7,000 करोड़ का धंधा, लेकिन इनका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़। तो दोनों का मार्केट कैप ऑलमोस्ट एक जितना। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो डॉक्टर रेड्डी डेविस से कितनी बड़ी है देवाशीष जी? 3 गुना बड़ी है ना? तो 3 गुना बड़ी, लेकिन उसका मार्केट कैप आधा। सेम चीज यहाँ पे आप दूसरी देख रहे हो, ये कौन है? 15,000 करोड़ वाली कैडिला, 15,000 करोड़, मतलब वो डिविस से डबल बड़ी कंपनी है, पर मार्केट कैप उसका डिविस से आधा है। तो ऐसा क्यों होगा देवाशीष जी? वाई? सर उसका ये जो कंपनी का जो मार्केट कैप कम है, इसका सबको डेब्ट बहुत ज्यादा है और इसीलिए शायद राइट, बराबर है। देखो अभी देवाशीष जी आपने क्वालिटी पे काम नहीं किया है, तो हम ये कॉन्फिडेंसली नहीं कह सकते कि चलो डेब्ट ज्यादा है कि क्या है, पर इतना है कि कुछ है, इन्वेस्टर ज्यादा भरोसा करते हैं डिविस पे। राइट, हम लोग करीबन 10 साल से लोगों को डिविस ही रिकमेंड करते थे और ये सब अवॉइड कराते थे, लेकिन देखो आज क्या हुआ, आज डिविस छोटी होने के बावजूद इतनी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसकी क्वालिटी भी देखी थी और ग्रोथ देखो यहाँ पे, देखो आपके सामने ही है ग्रोथ। मैं अगर ये सबको सिंगल डिजिट कर दूं, सन फार्मा का ग्रोथ कितना है? ओनली 2%। राइट, डिविस का ग्रोथ कितना है? 19%। तो ह्यूज ग्रोथ, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ग्रोथ भी डिविस का बढ़िया है और ये ग्रोथ की वजह से कंपनी अब बड़ी बनती है। राइट, यहाँ पे आप ग्लैंड फार्मा भी देख रहे हो, आपने डेटा डाला कि 32% ग्रोथ, सो इट इज गुड ग्रोथ है ना। इनका अभी आईपीओ आया था। राइट, पर खाली ग्रोथ देख के हम पैसा नहीं डालेंगे, हम क्वालिटी भी चेक करेंगे। लेकिन वो चलो आज की बात नहीं है, आज हमें खाली इतना डेटा चाहिए कि इज फार्मा अ ग्रोइंग सेक्टर और नॉट। तो मुझे जवाब मिल गया, फार्मा इज अ ग्रोइंग सेक्टर। राइट सर? ओके, तो अभी जो भी हमने 3 एक सेक्टर देखे, आईटी, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस और फार्मा। राइट, आप में किसी को उस पर कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। राइट, एंड वी आर गोइंग टू टॉक विद अदर पार्टिसिपेंट ऑल्सो। मैं सबसे पहले बंकिम चंद्र जी ने हैंड रेज किया हुआ है, लेट मी टॉक विद बंकिम चंद्र जी। यस प्लीज बंकिम भाई, यू कैन रेज योर क्वेरी। हेलो, या बोलो बंकिम भाई। हाँ जी सर, आप वो मेन पेज पे आइए ना सर। 1 मिनट। ओके ओके, उसमें जो मैंने ये रेड कलर से जो ब्लॉक हाईलाइट किया है, हाँ, वो मैंने किया है। तो उसमें जैसे अपना 2016, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 ऐसे 1 ईयर का 4 स्पान डेटा लेते हैं। और यहाँ पे अपने CAGR का कैलकुलेशन में जो अपनी फॉर्मूला है उसमें डिवाइडेड बाय 3 करते हैं 4 की जगह पे। बराबर है। राइट, ओके, तो वो एक कंफ्यूजन है, मुझे खाली समझना है आपसे। नहीं तो मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है वैसे। हाँ जी। ओके, 2020 में किसी का बॉर्न हुआ,
अगस्त 2020 में एक बच्चे का जन्म हुआ है, राइट। अभी हम अगस्त 2000 सेम अगस्त 2021 में है, राइट। तो आप डेटा कितने ले रहे हो? 2, लेकिन आप हाँ। इसको क्या कहोगे? 2 साल का हो गया। 1। हाँ, ओके, क्लियर। एकदम। अब- कैसे अब- गिनने का? अब ये तो मैंने 1 ही साल है तो एकदम सिंपल हो गया। मैं कैसे गिनूंगा पता है? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 1 साल। अब आपके केस में क्या है? 2017 के डेटा है और 2020 के डेटा है। ओके, कितने साल हुए? 3 years। या ऐसे ही गिनने का जब भी कोई भी CAGR ढूंढते हो तब। सर, बराबर। दूसरी एक इंक्वायरी है। ओके। ये जो मैंने काम किया है ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट पे, हाँ तो उसमें जो आप ओपन कीजिए ना वो पेज। हाँ, उस पे मैं आता हूँ। देखो लाइन टू ओके, लाइन हम आएंगे ओके, बंकिम भाई, ओके, ओके। राइट। तो उसमें उस एक समय हम कंफ्यूजन बात है करेंगे, लेकिन अभी जिनके सेक्टर में बात की, क्या उसमें कोई क्वेरी है? ना, उसमें क्लियर है। राइट। तो अभी जब मैं आपके सेक्टर पे आऊंगा तब हम उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। ओके, थैंक यू। राइट। या चले, थैंक यू बंकिम भाई। एंड धर्म भाई, यस धर्म पटेल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर, वो क्वेरी सॉल्व हो गई अभी। वो रिलायंस का जो था ना, हाँ उसमें ऑयल गैस का ही सिर्फ धंधा नहीं था। उसमें मुझे यही बताना था कि उसमें और रिटेल भी है, जियो भी है, ऐसा अलग अलग भी है, फैशन भी है, राइट। मगर वो क्या है आपने ना सॉल्व धर्म कर भाई, दी। वो प्रमोटर बहुत होशियार है, उसका ध्यान रहता है कि इंडिया किधर जा रहा है। और हाँ तभी बरोबर। उन्होंने क्या किया कि जब ऑयल एंड गैस में थे तब से उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर डाले हुए, और आज सोचो डिपार्टमेंट स्टोर 1.5 लाख का धंधा कर रहे हैं। तो 1.5 लाख करोड़ मतलब TCS जितना धंधा कर रहे हैं, है कि हाँ नहीं? जितना हाँ धंधा TCS कर रहा है, जितना धंधा HDFC बैंक कर रहा है, उतना तो उनका रिलायंस रिटेल कर रहा है। कितनी बड़ी कंपनी बना दी, इसीलिए उनको इतना जबरदस्त मार्केट कैप मिल रहा है। एक्टिव है एकदम एक्टिव। Mukesh Ambani, and now Yeah. he is in particular cloud, but having a type with Google for phones and all. Yeah, correct, And correct. whatever business is not doing good, they already sold to Amreco. Yeah, that's right. और अभी उसमें काम भी कर रहे हैं, ऑयल टू केमिकल में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि वो उनको नीचे Yeah. खींच रहा है। ये जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20% धंधा डाउन। देखो कैसे अमेजिंग, 20% से उनका धंधा डाउन हुआ इस साल। तो आपने देखा अभी तक वो करेक्शन में चल रहा था पूरा, कितने सारे सेक्टर चले, पर रिलायंस ने परफॉर्म नहीं किया ये साल। क्यों नहीं किया? क्योंकि अफेक्टेड था धंधा, राइट। अब जैसे जैसे मॉल खुल रहे, रिलायंस रिटेल परफॉर्म करेगा, जियो तो परफॉर्म कर ही रहा है, ऑयल टू केमिकल परफॉर्म करे, हम इनका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो कल भी एक बायोटेक में उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। राइट। तो उनका ध्यान है ही हर ग्रोइंग सेक्टर पे। क्लीन एनर्जी। या बराबर, राइट। सो धर्म भाई, आपका क्वेरी यहाँ का क्लियर हो गया है, राइट। एंड लेट मी मूव फर्दर। हाँ हम सर। लोगों ने अभी जावेद भाई, देवाशीष जी से बात की। नाउ लेट अस मूव टू तुषार भाई। सो तुषार के ही हैव वर्कड ऑन 2 सेक्टर्स। वैसे उन्होंने और कई सेक्टर पे भी काम किए हुए, पर जो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है उसमें आता है एक सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, और आता है स्पेशलिटी केमिकल, राइट। तो ये दोनों ही सेक्टर पे उन्होंने काम किया है। लेट मी आस्क तुषार भाई टू अनम्यूट हिमसेल्फ। या तुषार भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग तुषार भाई। आपने ये दोनों ही सेक्टर पे काम किया। मैं अभी सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट ओपन करूं? जी सर। राइट, चलिए। तो ये डेटा देख के मुझे पता चल रहा है कि मार्केट कैप करीबन 7 लाख करोड़ का है, राइट। तो 7 लाख करोड़ मतलब बुरा नहीं, बड़ा सेक्टर है। ये सब लोग मिलके 2 लाख करोड़ का धंधा भी कर रहे हैं। तो 2 लाख करोड़ का धंधा मतलब काफी बड़ी कंपनियां होगी, और अल्ट्राटेक, श्री जैसी कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में भी है, राइट। तो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा सेक्टर है। लेट मी ओपन इट। ओके तुषार भाई, जब आपने ये डेटा एनालिसिस किया, आपको क्या अमेजिंग डेटा मिले जो आप लोगों से शेयर करना चाहोगे? यस प्लीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, सर टोटल लिस्टेड कंपनी जो सीमेंट्स में है टोटल नंबर 42 है सर।
उसमें से टॉप 6 जो कंपनी है मोर देन 80% मार्केट कैप को कंट्रीब्यूट करती है सर। ओके सर उसके बाद में लास्ट 3 इयर्स का इनका जो CAGR सेल्स था 13% है, अगर सर अपन 80% के हिसाब से पकड़ते हैं तो, और करंट ईयर का सर 3% ग्रोथ है। राइट सर उसमें भी टॉप 6 में भी टॉप जो 2 है अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट सर इनका, और उसके बाद में ग्रासिम सर इनका ज्यादा मेजोरिटी ऑफ शेयर है सर सेल्स में। राइट ओके ओके, बढ़िया काम किया आपने। देखो एक काम करना पड़ेगा अभी हमें तुषार भाई, आपने जो इतनी कंपनियां ली है ना, अभी 42 कंपनीज है, राइट? आपने 80% ली, तो मतलब 80% तो कंपनियां इसके अंदर ऑलरेडी कवर कर दी, राइट? कुछ और भी डेटा लेंगे ना तो वो थोड़ा और ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, राइट? जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि थोड़े और डेटा इकट्ठे हो जाए। और दूसरी एक बात कि आपके डेटा को देख के मुझे एक चीज पता चल रही है कि सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका है यहाँ पे? अल्ट्राटेक का, राइट? करीबन 2.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप। दूसरे नंबर पे श्री सीमेंट आती है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो मैंने जब ये दोनों ही कंपनियां ली थी, श्री सीमेंट तो अभी निफ्टी में आई, मैंने जब अल्ट्राटेक ली थी तब वो भी निफ्टी में नहीं थी, तो मैंने मेरी आंखों के सामने दोनों को निफ्टी में आते हुए देखा है आफ्टर अवर बाइंग। तो बहुत खुशी होती है जब अपनी कंपनी कभी भी हम लेते हैं और 2-3 साल बाद निफ्टी में एंटर होती है, तो लगता है चलो अच्छे समय पे बाय किया, राइट? लेकिन यार तीसरी कंपनी कौन सी है सबसे बड़ी? ग्रासिम। उसका भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का। अब ग्रासिम जो है वो असल में सीमेंट की कंपनी नहीं है तुषार भाई, ओके, राइट? तो फिर यहाँ पे क्यों बता रही है? सर मेजॉरिटी ऑफ सर इनका रेवेन्यू मोर सीमेंट से आता होगा सर। करेक्ट, बहुत अच्छा आपने अंडरस्टैंडिंग लिया। जैसा अभी हमने देखा रिलायंस के केस में कि 50% टर्नओवर ऑयल गैस से आ रहा है, इसीलिए रिलायंस को ऑयल गैस में डाला है। रियल में रिलायंस इज अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। अब ग्रासिम अगर देखे तो ये तो केमिकल का कंपनी है, डाइवर्सिफाइड इनके बिजनेसेस है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट ये ग्रासिम की कंपनी है, राइट? तो जब अल्ट्राटेक को बनाना था, अल्ट्राटेक को बनाया, तब पैसा किसने डाला अल्ट्राटेक को बनाने के लिए? आदित्य बिरला ने नहीं डाला पैसा। उस समय किसके पास था? ग्रासिम के पास था। तो ग्रासिम कंपनी जो वर्षों से अलग अलग फील्ड में काम करती थी, उसने सीमेंट में पैसा डाला, और आज देखो एक सब्सिडरी कंपनी अल्ट्राटेक खुद ग्रासिम से बड़ी बन गई। Am I right? अल्ट्राटेक का मार्केट कैप ग्रासिम से बड़ा, ऐसा कैसे? राइट? देखो मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक ओपन करता हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट ओपन किया मैंने। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली फोकस हियर। मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता हूँ, ये जानने के लिए कि इनका मालिक कौन है। तो 60% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब मेरे को जानना है हु इज द प्रमोटर, राइट? किसका कंपनी है, किसका कंपनी है? 58% स्टेक किसका है? ग्रासिम का है, राइट? तो मतलब पैसा ग्रासिम का लगा हुआ है अल्ट्राटेक में। तो अल्ट्राटेक एक छोटी सी कंपनी थी, पर अल्ट्राटेक ने ग्रोथ जबरदस्त किया। तो क्या होगा, आज जो ये कंपनी धंधा करती है करीबन एज पर योर डेटा 45,000 करोड़ का, राइट? इसमें से ग्रासिम को कितना फायदा होगा? कितना स्टेक अभी हमने देखा? 58%, राइट? तो यहाँ पे जो मैं स्टेक देख रहा हूँ 44,000 करोड़ का धंधा है, इसमें से 58% यानी ग्रासिम में कितना गिना जाएगा? 26,000 करोड़, राइट? तो उसी वजह से ग्रासिम का खुद का धंधा जो है उससे ज्यादा तो उसको अल्ट्राटेक से कंट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके कारण ग्रासिम सीमेंट में आ गई। अब ये कुछ समय के बाद ऐसा होगा जब ग्रासिम यहां से निकल भी जाएगी, क्योंकि इन रियल टर्म ग्रासिम का धंधा नहीं है सीमेंट का, राइट? तो ये एक अगेन क्या इसे हम कहेंगे एक एरर है, राइट? जो हमें समझनी होगी तुषार भाई। क्लियर एकदम? यस सर। राइट? तो यहाँ पे जो आपको ग्रासिम का जो ग्रोथ दिखाई दे, क्या वो रियल ग्रोथ है?
तो वो हम सीमेंट का ग्रोथ मानेंगे? नहीं सर, Invest, I think if it is, yeah, it is not part of this sector, but ultimately they have spent money, like they have invested money in Ultratech. So whatever profit Ultratech is going to get, Grasim will get a share of it. Yeah, absolutely, they are going to get the share of it, but still we can't say that Grasim is a cement company. Yes, and that's true. The growth which they are having 24%, we will also not accept this growth कि भाई ये ग्रोथ तुम्हारा नहीं है, सीमेंट का नहीं है, ये ओवरऑल सब्सिडरियों का होगा, राइट? अब दूसरी एक बात यहाँ पे, चलो हम ये समझ गए हैं कि अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, फिर डायरेक्ट तीसरे नंबर की कंपनी कौन होती है? अंबुजा। ग्रासिम को हम इसके पार्ट में नहीं गिन रहे। अंबुजा, एसीसी, दालमिया भारत, जेके सीमेंट, दिस ऑल कंपनीज आर देयर हियर। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट ये 14% से ग्रोथ कर रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब अच्छा ग्रोथ है तुषार भाई, गुड ग्रोथ। फिर ये अंबुजा और एसीसी का नेगेटिव ग्रोथ है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? ऑन वन वे सीमेंट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, but Ambuja and ACC are not able to grow their sales. Is this likely possible? Seems to be not possible, but the data has shown it is. अभी डेटा है तो फिर मतलब हकीकत बात है, लेकिन देखो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। हाँ? ये तो सेल्स की फिगर है, तो सेल्स में तो डेप्थ नहीं आएगा पिक्चर में, डेप्थ नहीं आएगा, पर देखो सेल्स भी तो बढ़ना चाहिए। जिसका धंधा ही नहीं बढ़ेगा उसका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो जैसे जमाना बढ़ता रहता है, जैसे आप फर्ज कीजिए अंबुजा 2017 में 25,000 करोड़ का धंधा करती थी, आज भी वो 25 ही कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है खर्चे नहीं बढ़े होंगे? बढ़े होंगे सर। क्या इनको आपका सैलरी नहीं बढ़ाना पड़ा होगा? 4 साल पहले के पेट्रोल के दाम, अब तक फ्यूल के दाम, फ्यूल के दाम, तो मतलब इन्फ्लेशन देख या तो मतलब क्या होता है, जो कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाती है वो कंपनियों के मार्जिन घटते रहते हैं, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट नहीं मिलता है हमें, राइट? तो मेरा प्रश्न आपसे है, क्यों अंबुजा एसीसी का ग्रोथ नहीं हुआ? तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये सेक्टर में नहीं, आपको बहुत से सेक्टर में देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को एवरीबॉडी, whoever have done work on other sector, कि अंबुजा एंड एसीसी आर नॉट इंडियन कंपनीज। ये दोनों कौन सी कंपनियां हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी होती है, जैसे अंबुजा एसीसी, वैसे देखा जाए तो अभी दोनों एक ही कंपनी है, एसीसी अंबुजा की है, राइट? सो एसीसी इज पार्ट ऑफ अंबुजा सीमेंट and Ambuja is part of world renowned Lafarge Group, दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी, राइट? पर मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, भले वो आपके सीमेंट सेक्टर में हो, भले वो पर्सनल प्रोडक्ट में हो जिसमें कोलगेट जैसी कंपनी आती है, भले वो फार्मा सेक्टर में हो, मल्टीनेशनल कंपनियों का ग्रोथ लो रहता है। कैसा रहता है? लो। अगर इंडियन कंपनी होगी तो उनका ग्रोथ फास्ट रहेगा। ऐसा क्यों? कोई समझा सकता है यहाँ पे? व्हाई मल्टीनेशनल आर नॉट? क्या? क्योंकि रुपी का एप्रिशिएशन होता है तो नहीं, रुपी वाली बात नहीं आएगी। मैं समझा, आउट ऑफ कंट्री से भी डिमांड आता है सर। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ये जो आपने जो बात बताई, that is a true thing in multinational companies। हमें देखो एक चीज प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट को जो भी आने वाले 20 साल में फायदे होंगे, आज हम 2020 में है, मेरे को ये देखना है 2040 में कंपनियां कितनी बड़ी होगी। तो अंबुजा और एसीसी इंडिया जो ग्रोथ कर रहा है उसका फायदा जरूर उठाएंगे। ये दोनों ही कंपनियां इंडिया में एक्सपांड भी करेगी और ग्रो करेगी, पर दूसरी जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनली भी एक्सपांड करेगी। इंडियन बड़ी कंपनियां अलग अलग कंट्रीज एक्सप्लोर करती है, हमारी ही कंपनियां इंडोनेशिया में काम कर रही है, बांग्लादेश में काम कर रही है, राइट?
यूएस में काम कर रही है, यूरोप में काम कर रही है। तो जो आप इंडियन कंपनी देखोगे उन्हें बिजनेस वर्ल्ड से मिलेगा, इंडिया से भी मिलेगा, दुनिया से भी मिलेगा। पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तो इंडिया में जो है वो इंडिया का ही धंधा गिनाएगा। अब कोलगेट पामोलिव है तो कोलगेट इंडिया का धंधा हम लोग इंडिया में गिन रहे हैं। कोलगेट कर रही होगी दुनिया भर में धंधा, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो हमें खाली इंडिया का फायदा होगा। पर अगर मैं इंडियन गोदरेज, कंज्यूमर, मारिको में इन्वेस्ट करता हूं तो ये दोनों ही कंपनियां इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और डेवलप इकोनॉमी में भी धंधा कर रही है, जिससे हमें 20% का CAGR से ग्रोथ मिलता है इंडियन कंपनी में। सी द सेम थिंग यू कैन सी हियर। जनरली मैंने देखा है कि मल्टीनेशनल कंपनियों का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता है, राइट। फिर भी मैं आपको ये नहीं कहता इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां हाई क्वालिटी होती है, क्वालिटी में उनका कोई तोड़ नहीं है। क्यों हाई क्वालिटी? या तुषार भाई आप कुछ बता सकते हो क्यों मल्टीनेशनल कंपनियां क्वालिटी होती है और इंडिया उनके मुकाबले थोड़ा कम क्वालिटी होगा? व्हाई? क्योंकि उनके पास में सर फंड का इशू नहीं होगा शायद। एब्सोल्युटली राइट। वो कंपनियां 100 साल से चल रही है, दुनिया भर का अनुभव है, उनको पता है बुरे समय में क्या करना है, राइट। तो फंड का इशू नहीं है, डेट फ्री कंपनियां होती है। तो आप मल्टीनेशनल कंपनियों को देखोगे, ज्यादातर कंपनियां वुड बी डेट फ्री, अच्छे मार्जिन होंगे, वो उनका पॉजिटिव पॉइंट है। पर नेगेटिव पॉइंट क्या है? अगर क्वालिटी है खाली डिविडेंड मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। देयर इज नो ग्रोथ इन बोथ ऑफ दिस कंपनीज, राइट। यस सर। सो नाउ टेल मी that whether I should consider cement as growing sector or not, sir. तुषार भाई हाँ सर, कर सकते हैं सर, ग्रोइंग कर सेक्टर मोर सकते हैं देन। हाँ क्या? Yes. क्योंकि इंडिया 7%, ये 13%, अमेजिंग ग्रोथ। इस साल इंडिया -7.5, सीमेंट 3%, तो अभी भी इनका ग्रोथ बहुत बढ़िया है, राइट। तो ग्रोथ स्टोरी बरकरार है। सीमेंट इज अ ग्रोइंग सेक्टर, वी शुड इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, राइट। जब मैं इन्वेस्ट करता था, कंपनियां ये जो 15-15 हजार करोड़ का टर्नओवर करती थी, श्री सीमेंट 5,000 करोड़ करती थी, मेरे को डर लगता था क्या ये कंपनियां बड़ी होगी, राइट। देखो आज आप लोग देख रहे हो ये 50,000 करोड़, 15,000 करोड़ पहुंची। आपको डाउट है क्या कि अल्ट्राटेक कल लाख करोड़ का धंधा करेगी कि नहीं? अगर इंडिया में सीमेंट को बिकना है, अगर इंडिया में मकान बनेंगे, तो कोई डाउट ही नहीं है यही सब कंपनियां धंधा करेगी। तो अभी तो सीमेंट का कंजप्शन इंडिया में बहुत लो है कि लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो ये भी इंप्रूव हो जाएगा। करेक्ट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सो आई होप दिस ऑल थिंग्स वुड बी क्लियर्ड इन कमिंग टाइम, राइट। तो थैंक यू वेरी मच टू तुषार भाई फॉर डूइंग वर्क ऑन सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, और हमें अच्छी जानकारी आपके डेटा में से मिली। बिफोर वी मूव फर्दर, लेट मी चेक जस्ट हियर। यहाँ चिंतन भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। यस चिंतन भाई, यू कैन रेज योर क्वेरी। सर मेरा क्वेश्चन रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में है। या व्हेन वी से कि इसमें 50% उनका जो धंधा है वो ऑयल से आ रहा है, या एंड वी से कि वो वेल्थ क्रिएटर है, वी कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एंड ऑल। नहीं, अभी हमने ये बात नहीं की चिंतन भाई कि हाँ, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वेल्थ क्रिएटर है कि नहीं। हाँ हमने बात नहीं की, पर हाँ, जस्ट एक थॉट प्रोसेस था ओके, कि ऑयल जनरली उनका गैस का तो कुछ नहीं है, मेनली ऑयल ही है, राइट, और जनरली वो ऑयल रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल बाहर से लाते हैं और यहाँ पे रिफाइन करते हैं, जिसमें करेक्ट, मेजर कंपोनेंट है पेट्रोल डीजल। राइट, अभी आने वाले टाइम में व्हेन मेजॉरिटी पेट्रोल डीजल विल रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो वो केस में पेट्रोल और डीजल का अभी इन्होंने 120,000 का कुछ और इन्वेस्टमेंट प्लान किया है सऊदी अरब के साथ, तो उनका सप्लाई बढ़ जाएगा, इन कंपेयर टू दैट डिमांड कम आएगा। बराबर है। तो वो केस में जो उसका आईटीसी जैसा केस हो सकता है कि जिसमें उसका जो मेजर रेवेन्यू अभी आज की डेट में ऑयल से आ रहा है, पॉसिबल है कि 5 साल के बाद जब पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट कवर करे, वो टाइम पे उनका मेजर बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। आई मीन जस्ट एक पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। बराबर है, सही तो, बात है आपका चिंतन हाँ, भाई। तो वो केस में मे बी हमको आज की डेट में 3 साल पुराना ग्रोथ ये सब अभी दिख रहा है,
राइट, पर वो सेम ग्रोथ में भी 5 साल 10 साल 15 साल डाउन द लाइन एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। बराबर है। देखो अभी ये चीज अगर हम 10 साल पहले देखते थे तो क्या था कि 75% टर्नओवर नहीं, 80 से ज्यादा % टर्नओवर खाली ऑयल गैस का था। हाँ, पर वो बात उन्होंने भी समझी कि ऑयल गैस एक डिकेइंग इंडस्ट्री है, तो इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या है, चलो उधर पैसा लगाए। तो उन्होंने ये डिसीजन दशक पहले लिया, अभी उनको इनके रिजल्ट मिल रहे। देखो अभी 50-50 हो गया चिंतन भाई, 50% ऑयल एंड गैस, 50% अदर बिजनेसेस। जस्ट आप 5 साल जाने दो, ये क्या हो जाएगा पता है, 2080। क्योंकि आप उसके साथ ये भी देखो कि उन्होंने क्या क्रिएट किया है। एक सिर्फ पिछले 10 साल में उन्होंने एक टीसीएस क्रिएट किया है, 1.5 लाख करोड़ का धंधा रिटेल, 1 लाख करोड़ का धंधा कौन, जियो। तो ये अपने आप में कुछ जबरदस्त बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एचडीएफसी बैंक से ज्यादा धंधा करने लगा इनका रिटेल, जबकि वो तो सबसे बड़ी बैंक है। राइट, वो इनका भी गोल यही है चिंतन भाई कि ऑयल गैस को थोड़ा थोड़ा करके दूसरे बिजनेसेस को इतना बढ़ाए कि ऑयल गैस अगर इनको नीचे खींचे तो भी ये अपने आप को कवर कर पाए। पर सर वो बात सही है, पर जो उनकी आज जो कैपेसिटी है उनकी रिफाइनरी की, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी। करेक्ट। और उसमें जो वो बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कवर करना, और उसके बाद वो अरामको का इन्वेस्टमेंट जिसमें 25% स्टैक उसने अरामको को दे दिया, तो वो केस में आई मीन दैट इज ऑल्सो एक वर्चुअली डेट फ्री है, टोटल डेट फ्री तो नहीं है वो। नहीं, डेट फ्री तो अभी भी नहीं है, बहुत बड़ा डेट है, अभी भी 2 लाख करोड़ है। वो उसके इनकम के अगेंस्ट में वर्चुअली डेट फ्री बोल सकते हैं। बट ओनली थिंग इज कि ये जो आई एग्री कि जियो अच्छा बढ़ रहा है, रिटेल अच्छा बढ़ रहा है, एंड एजीएम में ऐसा भी बोला था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ बैटरी भी बनाने वाले हैं। राइट, दैट इज गुड न्यूज। बट विल इट कवर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस के आज की डेट में है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट कवर करना विथ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस? सेम आईटीसी जैसा केस होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? आई मीन क्योंकि हमें क्यों उनका इन्वेस्टमेंट कवर कराना है? क्योंकि उन्होंने जो पैसे डाले हैं रिफाइनरी बना, वो कॉस्ट तो कवर करनी पड़ेगी ना। वो तो कितने हर साल 30,000 करोड़ कमा रहे हैं, पैसा तो उन्होंने वो तो कब का निकाल दिया है। उनका जो आज का डेप्ट है वो ऑयल गैस का नहीं है, वो नए धंधों का डेप्ट है। ऑयल गैस में तो कमा के तो तगड़े एकदम हाथी हो गए वो, लेकिन ऑयल गैस में कमाया है, लेकिन ऑयल गैस में नेगेटिव पॉइंट क्या है, ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ। पर सर जो ये आज जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है उसके चलाने का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगा ना, और ये लॉस थोड़ी ना कर रहे ऑपरेटिंग कॉस्ट पे चिंतन भाई, अभी भी हमको ये मानना पड़ेगा वो एसेट है ना, तो बढ़िया ही कर रहे हैं। नहीं एसेट गिना जाएगा ना उसके साथ, एसेट इज ओके, बट मेरा ये कहना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से बोरोइंग जो आज है वो बोरोइंग, these people are very smart actually. These people are very smart. They know what is going on in future after 10-15 years, and they start their investment over there. Right. So they are deducing this and they are increasing their stake in other industries. So this is good that they are going with the time. So अभी particular cloud business है, तो they have already started working in cloud. Right. लेकिन अभी का वो हमारा टॉपिक नहीं है चिंतन भाई, क्योंकि अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा, अभी हमने डेटा ही नहीं देखा है उनका कुछ भी। तो एक बार डेटा देखिए, डेटा एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप ये क्वेरी निकल जाएगी। बराबर है सर? कल पे ही अपने हमें ये देखना है ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको ग्रोथ दे रहे हैं ये लोग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 50% ऑयल एंड गैस होने के बावजूद ग्रोथ आपको बढ़िया मिल रहा है। So we should expect कि यस ग्रोथ तो ये लोग अच्छा ही कर रहे हैं। अब लगाना चाहिए पैसा कि नहीं, वो सब बाद के चैप्टर की बात है, उसी समय हम डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड देवाशीष जी, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है या सर? मुझे हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में है, हाँ तो जी, उसका सीएजीआर में कैसे धोगा? क्योंकि जैसा पैकेज फूड में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, राइट, तो और नेस्ले का फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर,
राइट, वो सर समझ हाँ वही कैसे वो फर्स्ट ईयर हो गया, तो क्योंकि ब्रिटानिया में 3 साल का 3 ईयर लिया, वो 2017 को लिया, और नेस्ले को मैं लिया 2016 का। राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात देबाशीष जी। देखो, हमें उनका फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो, चाहे वो जनवरी टू मार्च हो, राइट, चाहे वो जनवरी टू दिसंबर हो, चाहे अप्रैल टू मार्च हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। हमें ये 12 महीने अगर है तो 12 महीने का ग्रोथ चाहिए। नेस्ले के केस में क्या होगा, अगर वो जनवरी टू दिसंबर करते तो भी आपको प्रॉपरली डेटा तो मिल ही जाएंगे इसी प्रकार से, पर जनवरी टू दिसंबर के मिलेंगे, तो हमें तो 4 साल का ग्रोथ चाहिए, वो मिल जाएगा ना, राइट, बराबर। लेकिन थोड़ा उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी हम उसके ऊपर प्रैक्टिकली आएंगे तब इसके ऊपर बात करते हैं, राइट। ये सेक्टर में आने दो, ओके। और राइट, बाकी क्वेरी पे भी हम आएंगे, बट 1 to 1 लेट मी मूव फर्दर। यहाँ पे अभी हमारी जो बातचीत हुई है, ओके, हमारी जो बातचीत हुई कुछ सेक्टर पे अभी बातचीत हुई। स्पेशलिटी केमिकल, तुषार भाई ने काम किया है, यस इट इज ग्रोइंग गुड, राइट, 7%, 10%, मतलब बढ़िया ग्रोथ है। स्पेशलिटी केमिकल इज अ, कुछ देर में बात करेंगे मैडम, यस। Oh, sorry, sir. You can continue. I can ask you. So specialty chemical is a growing industry, we can say, as considering this data. हम डेटा पे डेप्थ में अभी नहीं जा रहे। One more sector from तुषार भाई was life insurance. See, amazing growth, 17%, मतलब क्या कहोगे आप लोग, क्या ये एवरेज ग्रोथ है? बिल्कुल नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां 17% से अगर बढ़ रही है तो आपको कहना चाहिए ये इंडिया से कितना ग्रोथ ज्यादा है? ऑलमोस्ट 2.5, 2 गुना ज्यादा। या तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, ये सब कंपनियां ज्यादातर अभी आईपीओ में आई, 2-3 साल पहले इनका आईपीओ आया, और देखो ये सब निफ्टी में भी आ गई। एसबीआई लाइफ आ गई, आप देखोगे एचडीएफसी लाइफ भी अभी निफ्टी में आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इज अ ग्रोइंग सेक्टर, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस पे काम किया है तुषार जी ने। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। नई आईपीओ, फिर भी 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप, बड़ा मार्केट कैप, धंधा भी ये लोग अच्छा कर रहे हैं। गो थ्रू दिस सेक्टर, दिस इज द फोकस्ड सेक्टर, राइट। अब बंकिम चंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं, या बंकिम भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या सो बंकिम भाई, आपने यहाँ पे ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट पे काम किया हुआ है। यस सर। आपके डेटा के हिसाब से ऑटो पार्ट्स 9% से बढ़ रहा था पिछले 3 सालों से, तो 9% मतलब बुरा ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ, क्या कहोगे आप? एवरेज से थोड़ा ज्यादा। या एवरेज से थोड़ा ज्यादा, एब्सोल्युटली। और ये साल 8% मतलब अच्छा हुआ है, ये तो है ना, बुरा नहीं है ये ग्रोथ। तो सर उसमें एक आप डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा। या चलो ओपन करते हैं। और आपके डेटा के हिसाब से मदरसन इज द लार्जेस्ट कंपनी एंड बॉश इज सेकंड लार्जेस्ट। यस। चलो मैं आता हूँ ऑटो पार्ट्स में, और ये डेटा को देख के इतना पता चलता है कि यहाँ पे कम कंपनियां नहीं है। कितनी कंपनियां हैं? 100 कंपनीज आर देयर इन ऑटो पार्ट इंडस्ट्री। तो ये पुरानी इंडस्ट्री है, राइट। सबसे बड़ा मार्केट कैप, सबसे बड़ी कंपनी और ग्रोथ, ये सारे डेटा को अगर ध्यान में रखते हैं बंकिम भाई, तो आपको क्या जानकारी मिली ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री से? यस प्लीज। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में ये सर एक मार्केट कैप शेयर में एरर आ रही है यहाँ पे। हाँ, ये मैंने डेटा फिल किया तब तो एरर नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके। तो जैसे अपने ऑटो इंडस्ट्री 4 व्हीलर का भी मैंने स्टडी किया, तो उसकी तो वो डाउन हो रहा है, लेकिन ये जो ऑटो पार्ट्स कंपनी है उसका जो डेटा है, डेटा के हिसाब से वो अप रहे। लेकिन आप थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल कीजिए,
तो मदरसन सुमी और बॉश का जो CAGR है, वो जो बड़ा प्लेयर है उसका CAGR कम है, लेकिन उसके बाद की जो दो कंपनी है उसका CAGR जो मैंने ये येलो से हाईलाइट किया तो उसका ज्यादा है, वो हिसाब से वो दिखा रहा है। तो अपने को उसको कंसीडर कैसे करना है? अभी आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है कि ऑटो पार्ट्स का धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो टॉप की सब कंपनियां हैं उनके आपने डेटा डाले 17 और 20 के, तो आपको पता चल गया कि ये सब डेटा के हिसाब से आपको ग्रोथ पता चल जाता है कि किसका कितना ग्रोथ है। मतलब आपका ऑटो पार्ट्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, राइट। तो बढ़ रहा है तो दैट इज गुड कि चलो अच्छा ग्रोथ है, राइट। अभी हम कंपनी पे हम कल बाय नहीं कर रहे कि चलो ये अच्छा बढ़ रहा है इसको बाय कर लो। अभी तो आधा नॉलेज है, अभी तो क्वालिटी भी देखना बाकी है। ये सिर्फ एक कंक्लूजन पे आपको ले जाएगा कि ग्रोथ किसका है, इंडस्ट्री बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ग्रोथ ढूंढने के साथ आपको कुछ डेटा और एक्सप्लोर होता है, आपको पता चलता है सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी कौन। तो कौन है ऑटो पार्ट में सबसे बड़ी कंपनी? मदरसन सुमी, राइट, बॉश, सोना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एंड्योरेंस, मिंडा, सुंदरम, ये सब कुछ हुई कुछ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों के नाम। 100 में से टॉप की कंपनियां ये सब है, टॉप 7 है या टॉप 7। उसी का मार्केट कैप 63% है। राइट, सेल्स जो मैंने सेल का लिखा है 63% उसका सेल है। ओके, अब आपने जब बिजनेस देखा तो बिजनेस में सबसे बड़ा कौन है पंकिम भाई? मदरसन सुमी है। मदरसन सुमी। अब ये तो ह्यूज डिफरेंस है, जैसे मदरसन सुमी जो सबसे बड़ी कंपनी, उसका धंधा आपके डेटा के हिसाब से 60,000 करोड़। यस सर। और दूसरे नंबर की कंपनी कौन है? ये है सेकंड नंबर, क्या नाम है? बॉश। उसका खाली 10,000 करोड़। यस। फिर कोई और है ही नहीं 10,000 से ज्यादा। बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा डिफरेंस, मतलब ये क्या हुआ अंकित भाई? ह्यूज लीडरशिप है, इसको कहेंगे, क्या कह सकते हैं? ह्यूज लीडरशिप, ह्यूज लीडरशिप। मतलब ये आगे वाला बंदा इतना दौड़ रहा है, मदरसन सुमी का धंधा इतना बड़ा है कि उसके नजदीक भी कोई नहीं है। पूरे ये राजा सेक्टर, राजा कंपनी हुई हम बोल सकते हैं, राइट, कि कोई कंपनी आधा धंधा भी नहीं कर रही है। मतलब हम नहीं सोच सकते आने वाले 10 साल में भी मदरसन को कोई टक्कर दे सकती है, कोई इतनी बड़ी बन सकती है। कोई भी कंपनी को मदरसन से बड़ा बनने के लिए उसको कितने कगार से बढ़ना पड़ेगा, और वो भी तब जब मदरसन 0% से बढ़े और दूसरा कोई 40% से बढ़े, तब जाके वो मदरसन को छुएगा। और मदरसन का ग्रोथ कितना है? 13.60, मतलब 14%। तो मतलब एक तो ऑलरेडी वो बड़े हैं, और ग्रोथ किसका अच्छा है? उन्हीं का अच्छा है कि नहीं बंकिम भाई? यस सर। राइट। तो इतने बड़े हैं, लोगों को लगता है जो बड़ी कंपनी होगी वो ग्रोथ नहीं करेगी, तो वो एकदम नीचे वाली कंपनियों में जाते हैं। फिर 10 साल बाद उनको पता चलता है यार मेरी कंपनी तो बड़ी नहीं, वो बड़ी वाली और डबल हो गई। तो ये हकीकत है, देखो, राइट। ह्यूज ग्रोथ इज सीन इन मदरसन सुमी टाइप ऑफ कंपनीज। लेकिन सेम स्टोरी, ये बॉश का क्यों नेगेटिव ग्रोथ है पंकिम भाई? किसी का नेगेटिव नहीं है, क्यों बॉश अकेला नेगेटिव? क्योंकि बॉश कौन सी कंपनी है? अभी हमने सीमेंट में इसकी बात की थी, एमएनसी, एब्सोल्युटली राइट। तो बॉश एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियों में होता है हाई क्वालिटी होती है, ये अच्छी कंपनियां होती है, डिविडेंड आपको हर साल देती है, लेकिन ग्रोथ इनका कम रहता है। देखो एकदम यहाँ पे आपके सामने है, दे आर नॉट एबल टू ग्रो, राइट। लेकिन इंडियन कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो आपका डेटा देख के मुझे ये मिला कि यस, ऑटो पार्ट्स में निवेश करना चाहिए, ये ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा, बड़ी कंपनी कौन सी है? मदरसन है। तीसरा, धंधे में भी सबसे बड़ा वो है, कोई उसको छू सके ऐसा नहीं। चौथा, ग्रोथ भी मदरसन बढ़िया कर रही है, राइट। और ये 16% वाली कौन है? मिंडा इंडस्ट्री, नाम सुना है मिंडा का? यस सर। या तो ये मिंडा का भी मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा है ना। हम ये कह सकते हैं मिंडा, मदरसन, ये दोनों कंपनी के ग्रोथ बढ़िया है। लेकिन एक चीज मदरसन के पास है जो मिंडा के पास नहीं,
वो क्या? धंधा, सेल्फ। धंधा, धंधा, राइट। तो धंधे में तो एक ही कंपनी माहिर है ये सेक्टर में, और वो है मदरसन। बराबर है? बिल्कुल। तो आपके लिए ये डेटा मिलना कि ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब पोस्ट कोविड भी इसका ग्रोथ अच्छा है ना? यस सर। कोरोना के बाद का भी ग्रोथ अच्छा है, तो यस वी शुड कंसीडर ऑटो पार्ट्स इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट बंकिम भाई? यस सर। सर उसी के अंदर वो सोना कंपनी जो है ना, सोना कंपनी, उसको आप स्क्रॉल राइट साइड स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके, राइट साइड कर दिया। और यस, तो उसमें आप पोस्ट को भी देखिए, सेम जबरदस्त राइजिंग मिला है, राइट 50.87। और ये जो 3 साल का जो है उसका डेटा नहीं था, तो मैंने दूसरे 3 साल ले लिए, तो उसका भी 18.55 है। तो एक्चुअली देखे तो सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी ये सोना है, मदर कंपनी, और ये जो मिंद्रा से भी ज्यादा है। तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखो ये उतना ही है। अभी यहाँ पे आप जो ग्रोथ देख रहे हो 19%, 16%, 14%, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये ऑलमोस्ट सब एक जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी आप देख रहे हो सोना 19 है, कल मिंडा 19 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। लेकिन ये 1% वाले का मानना पड़ेगा, चलो इनका तो बहुत ही लो ग्रोथ है, राइट। पर यहाँ पे टॉप ग्रोथ में कौन है? तो मदरसन, सोना और मिंडा, ये तीनों कोई ग्रोथ अच्छे है। बराबर। अभी इस साल 51% का ग्रोथ आया, वो एक आध साल आ सकता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, कोई नया प्लांट लगता है, सेल्स अच्छे रहते हैं, उस साल ग्रोथ आ सकता है, पर उससे हम ये नहीं मानेंगे कि पूरी लॉन्ग टर्म स्टोरी बनने वाली है, राइट। एक आध साल आया, इट्स ऑल राइट। मतलब उसको सिर्फ वॉच में रख के देख सकते हैं, या रख सकते हैं कि भाई धंधा तो अच्छा इन लोगों का बढ़ रहा है, बराबर। ओके ओके ओके, चलिए, तो हमें बंकिम भाई के डेटा से एक हमारी आइडिया क्लियर हुई कि यस, ऑटो इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड वी नीड टू फोकस इन ऑटो ऑल्सो। कितनी सारी कंपनियां थी, सोचो 100 कंपनियां, पर धंधा तो खाली 6-7 ही करती है, राइट। सो दीज आर द कंपनीज हु आर डूइंग गिविंग मार्केट कैप एंड सेल्स। कोई भी कंपनी निफ्टी में नहीं है, राइट, क्योंकि सबसे बड़ी भी 70,000 करोड़ कर रही है। लाख करोड़ तो इन सबका मिला के धंधा है, तो मदरसन का 70, बाकी का कितना? तो नन ऑफ द कंपनीज आर फ्रॉम निफ्टी 50 हियर, राइट। इसके ऊपर का कोई भी सेक्टर देखे, कोई ना कोई कंपनी निफ्टी में थी, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स, हमारी बंकिम भाई से बात हो गई, राजेंद्र जी से बात हो गई। बंकिम भाई ने यहाँ पे सिगरेट पे भी काम किया है, और सिगरेट का एक अच्छा डेटा बंकिम भाई लेके आए कि लोगों के मन में डाउट है आईटीसी बढ़ता क्यों नहीं है, बढ़ता क्यों नहीं है, ग्रोथ भी तो होना चाहिए दोस्तों। 4% का डी ग्रोथ, तो धंधा नहीं बढ़ेगा, उम्मीद मत रखो, राइट। देयर इज नो ग्रोथ इन सिगरेट, वी कैन सी फ्रॉम बंकिम भाई's डेटा। इवन कार एंड यूटिलिटी व्हीकल, यानी मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसमें आती है, दे आर हैविंग अ लो ग्रोथ। 2% मतलब ग्रोथ अच्छा नहीं है पिछले 3 सालों का, तो उसकी इफेक्ट भी आप देख रहे हो, इंडिया के जीडीपी से भी कम चल रहे हैं, राइट। पर यहाँ पे हाँ, इस साल तो और बुरे हाल है, 22%, मतलब एकदम बुरे हाल इनके। देबाशीष जी ने पैकेज फूड पे काम किया है, यू शुड गो एंड चेक हिज डेटा। देखो 12% का ग्रोथ, मतलब दिस इज अ डिमांडिंग सेक्टर। अरे यंग इंडिया, इंडिया अगर हम बोलते हैं यंग है, तो यंग इंडिया पैकेज फूड तो कंज्यूम करता ही है ना। मैगी कितना पसंद है उसको, ब्रिटानिया की बिस्किट खाते हैं। पैकेज फूड इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। ना कोरोना में इसको तकलीफ हुआ, ना प्री कोरोना इसको तकलीफ हो रहा था। दिस सेक्टर वी शुड सी, राइट। भरत यादव, he has worked on internet catalog and banking. Yeah, just we will talk with Bharat bhai. Before him, let me go through other people's data, right. यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों से हमारी बात होगी जिन्होंने काम किया हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर एक सेक्टर चेक करना इन लोगों की जहां पे ये लोगों ने काम किया हुआ है। वी हैव मिस्ड, ओके, जितनों को भी नाम है, वी हैव टॉक विद ईच एंड एवरीवन एक्सेप्ट भरत यादव,
राइट? सो लेट मी टॉक नाउ विद भरत भाई. यस भरत भाई, अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को. हेलो, जस्ट अ मिनट. आवाज आ रही है? यस यस भरत भाई, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है. तो आपने एक तो बैंक पे काम किया है भरत भाई, राइट? तो ये बैंक को मैं ओपन करता हूँ. आपके डेटा के हिसाब से जब बैंक को आपने पूरा एक्सप्लोर किया, आपको क्या अच्छी इंफॉर्मेशन मिली जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? यस प्लीज. उसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एचडीएफसी का है और सेल्स भी. करेक्ट. दूसरे नंबर पे बैंक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, पर यहाँ पे आपको ये दोनों ही बैंक का मार्केट कैप गलत बताएगा. सही बात है ना? हाँ. परमानेंट एरर ये भी. तो ये हमें समझ लेना पड़ेगा और डेटा इधर से ले लेना, राइट भरत भाई, ताकि ये क्लियर हो जाए, दोनों के मार्केट कैप आपको प्रॉपर मिले. तो चलो, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा. और क्या इंफॉर्मेशन मिली आपको? और सबसे ज्यादा ग्रोथ 3 ईयर का है वो एचडीएफसी का ही है. अरे ऐसा थोड़ी ना होता है भरत भाई, छोटी बैंक ज्यादा ग्रोथ करती है, इतनी बड़ी एचडीएफसी कहाँ ग्रोथ कर पाएगी? सही डेटा लिया है आपने, 20% की ग्रोथ से बढ़ा है. और एक्सिस बैंक जो छोटी बैंक है उससे वो 12% से बढ़ी है. सही बात है? सही है. पर लोगों को ये लगता नहीं है ऐसा, उनको लगता है ये आईडीएफसी का ग्रोथ ज्यादा होगा, राइट? तो ये फैक्ट है आपके सामने. एचडीएफसी बैंक है वो ग्रोन बाय 20% कगार. ये मेरे को 10 साल पहले भी डर लगता था कि सबसे बड़ी एचडीएफसी है, कल बढ़ेगी कि नहीं. पर आप ये डेटा इनके 10 साल के देखोगे, सेम डेटा यू आर गोइंग टू गेट, राइट? सो दैट्स अमेजिंग थिंग व्हेन वी सी डेटा. बढ़िया ग्रोथ 20%, मतलब अभी हमने जितने सेक्टर देखे बहुत कम कंपनी आपको मिली होगी जो 20% के कगार से बढ़ी है. जस्ट वी शुड से दिस इज एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, राइट? लेकिन यहाँ पे भरत भाई एक एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा. गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट को अलग करके कर पाओगे? वो कर पाऊंगा. और स्मॉल फाइनेंस भी मेरे को अलग करना है, बाकी रह गया. या क्या करो, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट अलग, ताकि हमें क्लियर आइडिया आ जाए कि सही में प्राइवेट बैंक कितने ग्रोथ से बढ़ रही थी और गवर्नमेंट बैंक कितने ग्रोथ से बढ़ रही है. बराबर? तो ये नेक्स्ट वीक हम लोग जरूर चेक करेंगे. पर एक चीज मेरी क्लियर हो गई है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक ये दोनों सबसे बड़ी बैंक है इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रहे हैं ये लोग. एसबीआई जो गवर्नमेंट बैंक है उसका धंधा 4 लाख करोड़ है, तो सबसे बड़ी वो हुई, पर उनका ग्रोथ कम है. गवर्नमेंट है ये, तो ये प्राइवेट जैसा ग्रोथ नहीं करेगी, राइट? वन मोर थिंग, मैंने देखा एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ ह्यूज है. इसीलिए आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी दोनों एक जितना धंधा करती है, पर दोनों का मार्केट कैप एक जितना नहीं है. अमेजिंग भरत भाई, कैसा है एकदम. देखो, दोनों का धंधा एक जितना, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा. हाँ, पर एचडीएफसी का मार्केट कैप डबल. यानी इन्वेस्टर को किस पे विश्वास है? एचडीएफसी. या राइट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच भरत भाई. और सर मेरे को एक प्रॉब्लम था, मैं मतलब कि मार्केट कैप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इधर से जो इंडस्ट्रीज में लिखना है ना, वो डेटा इधर से 0 वैल्यू ही आता है या 1 आ जाता है. अच्छा, देखो यहाँ क्या करो, ये एचडीएफसी की बात कर रहे हो ना? नहीं, टोटल मार्केट कैप या कुछ ग्रोथ लिखना है ना इंडस्ट्रीज में मेन पेज पे, तो डायरेक्ट. एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हो ये जो चीजें, ये है ना मार्केट कैप लिखा है ना, मैंने खुद लिखा है, बाकी मैं रख नहीं पा रहा हूँ. ओके, तो देखो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ. इज इक्वल टू, अब मैं बैंक में गया और ये आपका मार्केट कैप का डेटा इधर है, इसे मैंने सिलेक्ट किया, राइट? अभी एनए क्यों आ रहा है? क्योंकि यहीं पे एनए है, बराबर ना? ये आपको एसबीआई का डेटा, कैनेडा बैंक का डेटा, जो एनए है उसको क्लियर करना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. बराबर है भरत भाई? हाँ. या
तो यहाँ पे हमने बैंकिंग इंडस्ट्री देखा दोस्तों, कैसे अलग अलग इंडस्ट्री के ग्रोथ इफेक्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर इंडस्ट्री बढ़ती है तभी हम भी पैसा कमाएंगे, राइट। लेट मी चेक, यहाँ पे जावेद भाई ने हैंड रेस किया हुआ था। यस जावेद भाई, यू कैन रेज योर क्वेरी। ये जो डेटा हम जब दे रहे थे ना, तो कुछ कंपनीज के डेटा कंसोलिडेट में नहीं मिल रहे थे। ओके तो उस टाइम पे अगर जैसे किसी का डेटा ही नहीं है, 1 साल का ही है, तो आपने बताया था कि एनुअल रिपोर्ट से चेक करना है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में कैसे चेक करना है सर इसको? पहली चीज, अगर कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है तो ये भी होता है कि सब कंपनी का कंसोलिडेटेड होता भी नहीं है जावेद भाई, बराबर ना। देखो कंसोलिडेटेड किसका होगा, जिनकी कुछ सब्सिडरीज है, जो कुछ इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, राइट। अब जब उनका कंसोलिडेटेड नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं, बराबर। पर आपका, अगर आपने देखा कि कोई कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा है, मतलब कंसोलिडेटेड बिजनेस वो कर ही रहे हैं, तो फिर उनका डेटा पुराना भी कंसोलिडेटेड मिलना ही चाहिए। मतलब किसी कंपनी का डेटा ही नहीं है, जैसे 2021 दिखा रहा है, उस पर्टिकुलर कंपनी का जहाँ डेटा ही नहीं है, वो उसको कैसे निकालेगा सर? 2021 में क्या बता रहा है? मतलब उसका 1 ही साल का डेटा है उसमें, 1 या 2020 का, बराबर है। उसके पहले का कोई डेटा ही नहीं है, ऐसा बता रहा था। तो फिर आपको एनुअल रिपोर्ट से देखने पड़ेंगे। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि एनुअल रिपोर्ट में कैसे मतलब चेक करते हैं? अच्छा, वो एक वीडियो डाला है ना एनुअल रिपोर्ट कैसे ट्रैक करने का, तो अंदर एक एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। सर हाँ, मैंने ट्रैक तो किया था, लेकिन फिर भी मतलब देखो ये जैसे मैं एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक है ना, ये अल्ट्राटेक, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। देखो, देखा कहाँ से गए हम लोग? नहीं, ये ओपन भी मैंने कर लिया था, लेकिन उसमें फिर आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो वो बताओ, तो मैं सीधा वो कंपनी पे आ जाता हूँ। वो याद है कंपनी? अभी एक्चुअली 4-5 नहीं, मुझे 4-5 डिपार्टमेंट अलग अलग किया था ना, उसमें से एक में आया था। अच्छा ओके, देखो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट जोमेटो का है सर, वैसे जोमेटो का। देखो अगर वो आईपीओ अभी आया है तो यहाँ पे तो कोई डेटा होगा ही नहीं, क्योंकि बीएससी में वो लिस्ट ही अभी हुआ है, राइट। तो ऐसी कंपनियां जो लेटेस्ट लिस्ट हुई है उनका डेटा आपको किधर से मिलेगा? जैसे जोमेटो है, अभी आप लोग कह रहे हो जोमेटो, राइट। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जोमेटो आईपीओ, मैंने इतना लिखा, राइट। ये कोई कंपनी आ गई जिसने उसकी डिटेल दी थी, मैं क्लिक कर रहा हूँ जोमेटो आईपीओ। मेरे को क्या चाहिए? धंधे का डिटेल। यह मिल गया मेरे को धंधे का डिटेल। रेवेन्यू कितना है इन लोगों का? 19 में कितना था? 1400 करोड़। 20 में कितना था? 2742। तो मेरे को जो नए आईपीओ है रिसेंट लिस्टेड कंपनीज के केस में अगर 3 साल के मिलते देन आल्सो इज गुड, राइट। मेरे को 19-20 यानी 1 साल का यहाँ का ग्रोथ मिलेगा, और 20-21 का भी डेटा है तो 1 साल का ग्रोथ, करंट ईयर ग्रोथ में यहाँ से ले सकता हूँ, बराबर है। तो रेवेन्यू आपको यहाँ से मिल सकता है। कोई भी कंपनी, जैसे आप एप्पल देख रहे हो, एप्पल आईपीओ, नया नया आईपीओ आया था, मैंने उसको यहाँ पे क्लिक किया। एप्पल के 2014 से लेके 19 तक के डेटा उन्होंने यहाँ पे दिए थे, राइट। अब मेरे को कितने चाहिए? उतने ही चाहिए जितने दूसरी कंपनी के हैं, राइट। 17 से लेके 20 तक के, राइट। तो 17, 18, 19 तो मिल गए, यहाँ से 20 तो ऑलरेडी आपके पास है बीएससी इंडिया में, राइट। तो इस प्रकार से आप वो डेटा देख सकते हो, राइट। और भी कुछ प्रकार है, मैं नेक्स्ट वीक आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इतनी कंपनियों पे आपने ऑलरेडी काम कर दिया, अब ये सेक्टर बाकी है। देखो आपने जितना काम किया आधा सेक्टर हो गया, पर हमारे पास आधा इंडिया बाकी भी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, पहला उन लोगों से जिन्होंने अभी भी डेटा फीड नहीं किया है, देखो डेटा नहीं डालेंगे, काम नहीं यहाँ पे करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, सीखने में रियल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा। तो जो भी लोगों का होमवर्क बाकी है, आई विल रिक्वेस्ट देम टू काइंडली कंटिन्यू द असाइनमेंट, इवन दे कैन कंसीडर देयर पीयर ग्रुप डेटा। देखो दूसरे दोस्तों ने जो काम किया है उनका भी डेटा देख के थोड़ा देख सकते हैं, बट वी नीड टू कंप्लीट दैट सेक्टर। तो नेक्स्ट वीक जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमको इंडिया अभी भी देखना है, राइट।
पर नेक्स्ट वीक मैं कुछ क्वेरी आपकी क्लियर कर दूंगा। जैसे अभी जावेद भाई ने बोला ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। मेरे को पता है कि आप लोगों ने जब पूरा हफ्ता इसमें काम किया तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे होंगे, क्योंकि बाकी लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रहे थे, राइट। तो मैंने उसके रिलेटेड कुछ डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीक शेयर करूंगा। ऐसा हो तो क्या करे, वैसा हो तो क्या करे। सर एक प्रश्न पूछना था। 2 मिनट ब्रेक रखो और डायरेक्ट अनम्यूट मत करो कोई भी व्यक्ति अपने आप को, राइट। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। जिसको भी क्वेश्चन करना है प्लीज रेज योर हैंड, राइट। बात हम जरूर करेंगे, हर एक से करनी है, बट लाइन टू लाइन, राइट। तो अभी सोनल भूतिका उनका जो हैंड रेज है तो पहले हम उससे बात करेंगे, राइट। लेकिन मैं मेरा कंप्लीट कर दूं कि मेरा प्लान क्या है। नेक्स्ट वीक वी आर नॉट गोइंग टू लर्न न्यू थिंग। हमने जो ये बढ़िया एक्सरसाइज जो बना रहे हैं इसको हम और एरर फ्री करेंगे। देखो अभी हमने कुछ एरर ढूंढी कि आईटी कंसल्टिंग में कुछ कंपनियों का मार्केट कैप नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे। बैंक में हमने देखा, भरत भाई ने काम किया है पर कुछ बैंक में मार्केट कैप नहीं दिख रहा था, हम एरर क्लियर करेंगे। तो ये एरर को रेक्टिफाई करेंगे और जो सेक्टर बाकी है उन्हें पूरा करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो कुछ और सेक्टर ले ले, और जिन लोगों का होमवर्क बाकी है दे शुड कंटिन्यू डूइंग दिस एक्सरसाइज। हमें पूरा इंडिया मिलेगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। सो नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स हैंड रेज्ड क्वेश्चंस। सोनल भूतिका, यस मैडम, यू कैन रेज योर क्वेरी। यस सर, या सर एक्चुअली अभी आपने ये जो बोला था ना कि जो कंपनी बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका ग्रोथ इज लिटिल लो। सो सर मतलब इसका वन ऑफ द रीजंस ग्रोथ लेस का मतलब ये होता है कि बिकॉज उनका जो बिजनेस होता है हम सिर्फ इंडिया वाला कंसिडर करते हैं, ठीक है, इंडियन बिजनेस का ग्लोबल कंसिडर करते हैं। तो इसका तो ये भी होता है कि बिकॉज नाउ वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग मतलब मेक इन इंडिया, तो मल्टीनेशनल का ऐसे भी मतलब इट इज गोइंग टू डिक्लाइन ओनली। करेक्ट, सही बात है मैडम आपका। इंडस्ट्री, हाँ, ओके। तो बस यही है। या ओके, so thank you very much Sunal, and I will expect some sectors from you next week, right madam? Yes sir, sure. Yeah. Okay, thank you. Debashish Ghosh, yes, कहिए देबाशीष जी। बोल रहा हूँ जो मेन पेज में जो आप मार्केट कैप लिखते हैं और सेल्स जो लिखते हैं तो डायरेक्ट मेरा कॉपी से डायरेक्ट ऐसे कैसे आएंगे? डायरेक्ट कैसे आएगा? आपकी शीट से यहाँ कैसे आएगा, ऐसा कह रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। राइट, देखो अभी हमने किया ना, देखो जैसे मैं आपके काम पे चला जाता हूँ, फार्मा में आपने काम किया है, राइट। देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, अब मैं सीधा आपका फार्मा सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर खाली कर्सर ले गया तो नीचे आ गया फार्मा लिखा हुआ, मैंने उसको क्लिक किया तो मैं आपकी स्प्रेडशीट में आ गया। अब मैं यहाँ पे मार्केट कैप पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट कैप का डेटा आता है एंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा मार्केट कैप। इधर क्यों एनए लिख के आ गया? क्योंकि मेन डेटा में एनए लिखा, राइट। कोई बात नहीं, ये लाइव है, ये थोड़ा यहाँ पे तुरंत का नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा तो अगेन आपका डेटा प्रॉपर हो जाएगा। ये ऑटो सिस्टम है, नो नीड टू वरी, बराबर है। या so thank you very much Debashish ji. Okay, thank you sir. And let me move further. Bharat bhai Yadav, क्या कहिए भरत भाई? yes भरत भाई, हाँ कहिए भरत भाई। हाँ, मैं ऐसा बोल के CDSL का डेटा मतलब BSC पर नहीं पता, NSE पर मिलता है, लेकिन कैसे निकलना है वो पता नहीं चलता। बराबर है, देखो CDSL का डेटा आपको BSC पे नहीं मिलेगा क्योंकि CDSL BSC पे लिस्टेड नहीं है, बराबर ना। जैसा अभी हमने देखा कि अल्ट्राटेक किसकी है, ग्रासिम की है, वैसे CDSL BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है सब्सिडरी, तो वो BSC पे लिस्ट नहीं कर सकते एज पर नॉर्म, सेबी के नियम के हिसाब से CDSL BSC पे नहीं आ सकती, राइट। तो भी NSE पे है, NSE पे इतना इजीली डेटा अवेलेबल नहीं है जितना इजीली BSC पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए क्या करने का, कभी भी कोई कंपनी का डेटा नहीं मिलता है, जैसे अभी जावेद भाई भी पूछ रहे थे, मैं यहाँ लिखूंगा CDSL
इन्वेस्टर रिलेशंस। क्या लिखा? जो कंपनी का डेटा चाहिए वो कंपनी का नाम लिखो और इन्वेस्टर रिलेशंस। मतलब ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा उस जगह पे जहां पे इन्वेस्टर रिलेशन की चीजें होगी। राइट, ये मैंने क्लिक किया तो मैं CDSL के फाइनेंशियल्स पे आ गया। देखो आ गया डेटा। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट हर साल के दिए हुए है ना, आपको पिछले 10 सालों के डेटा यहीं से मिल जाएंगे। डन भरत भाई, यहाँ से ले लेना। ओके, या चलिए, थैंक यू वेरी मच भरत भाई। एंड लेट मी मूव फॉर द बंकिम चंद्र। या कहिए बंकिम भाई, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हाँ सर, मैंने दो सेक्टर पे काम किया, एक ऑटो पार्ट और एक कार यूटिलिटी। ओके, तो ऑटो पार्ट्स में हम लोगों ने देखा कि वो ऑटो पार्ट्स आउट परफॉर्म्स कर रहा है। राइट, 9%। यस, और कार यूटिलिटी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। राइट, तो एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सेगमेंट है। बराबर है। तो ये डाइवर्जन जो है तो उसको हम कैसे कंसीडर करें? बराबर, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। असल में ऑटो पार्ट कार यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है। राइट, इसमें कोई शंका नहीं है। अब अगर कार यूटिलिटी में मंदी आएगी तो ऑटो पार्ट में भी मंदी को आना है। राइट, यहाँ पे कार और यूटिलिटी 2% से ग्रोथ कर रहे हैं और ऑटो ने 9% किया। कार का -22 हुआ पर ऑटो पार्ट्स का 8% हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि कार्स और यूटिलिटी व्हीकल में जो लिस्टेड कंपनियां आती है वो कौन है? मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा। मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब मारुति का जो धंधा है, राइट, मारुति का बिजनेस डोमेस्टिक है कि इंटरनेशनल है? वो एक्सपोर्ट भी करती है सर। एक्सपोर्ट भी करती है पर लिमिटेड एक्सपोर्ट। यस, मैक्सिमम डोमेस्टिक है। उसका मेजर कंजप्शन डोमेस्टिक कंजप्शन है। यस, बराबर। तो ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वो ज्यादातर हमें ये कहना पड़ेगा कि ये डोमेस्टिक ग्रोथ है और दूसरी कोई कंपनियां तो इतनी सारी यहाँ पे है नहीं। राइट, यस। अब जब आप ऑटो पार्ट्स देखते हो तो ऑटो पार्ट्स की जो कंपनियां हैं, इंडिया की ऑटो पार्ट की कंपनियां ज्यादातर बिजनेस इंटरनेशनल करती है। अब जैसे आपने यहाँ पे मदरसन देखा। यस, इनका धंधा कितना है बंकिम भाई अभी का? 60,000 करोड़ है ना? यस सर। ये 60,000 करोड़ में से इंडिया में कितना धंधा करती है जानते हो? वो डेटा नहीं एनालाइज किया मैंने। मैं बता देता हूँ। ये जो 60,000 करोड़ है ना, उसका 15%। कितना? सिर्फ 15%। तो मतलब एक मदरसन सुमी जिसका एक जमाने में 100% धंधा इंडिया से आता था, और इन्होंने गोल लिया कि भाई हम खाली इंडिया में ही ग्रोथ करेंगे तो फिर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम फंस जाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा, पूरी दुनिया में माल फेंको। इन्होंने एक गोल लिया कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना बात को, दुनिया में हम माल फेंकेंगे पर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो दिस इज देयर रूल। उनके दो नियम है। कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए मेरी, जैसे वो आईना भी बनाते हैं, राइट, रियर ग्लास, वो आगे का डैशबोर्ड भी बनाते हैं, तो उनकी मल्टीपल प्रोडक्ट है गाड़ी की, और उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। क्या ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन, ताकि कल ऐसा हो जाए कि कुछ प्रॉब्लम हो, कोई एक कंपनी को हम 15% से ज्यादा माल नहीं देंगे। मतलब कल हमारा टाटा मोटर से टाई अप है, टाई अप टूट गया तो कंपनी गई खड्डे में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी 85% धंधा दूसरी जगह से आएगा। राइट, बिजनेस पॉलिसी उसने डाइवर्सिफाइड कर दी। या तो ये डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ही, और देखो इसी वजह से तो ये अच्छा ग्रोथ कर पाए। 14% मतलब मंदी में ये ग्रोथ है। तो जब तेजी चल रही थी ऑटो में तब तो ये 20% से ग्रोथ करते थे, और अगेन अगर ऑटो में तेजी आती है तो आप देखोगे मदरसन का ग्रोथ वापस 20 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत है ग्रोथ करना। मतलब इंडियन कंपनी है लेकिन मैक्सिमम एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। या इसमें जो भी आप देख रहे हो ज्यादातर कंपनियां एक्सपोर्ट करती है, फिर चाहे वो मिंडा हो, चाहे सुंदरम फास्टनर हो, राइट, ज्यादातर कंपनियों का टर्नओवर
यूरोपियन कंट्रीज से आ रहा है, राइट। तो जहां पे गाड़ियां बिकती है वहां से हम लोग धंधा करते हैं, इसीलिए आपकी ऑटो पार्ट्स का ग्रोथ मेन सेक्टर से ज्यादा है। बराबर है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच बंकिम भाई। थैंक यू सर। एंड तुषार के, या कहिए तुषार जी। सर स्पेशलिटी केमिकल ओपन करिए सर। एक मिनट। ओके, ये है स्पेशलिटी केमिकल, राइट। कितनी कंपनियां हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे ओके, टोटल जबरदस्त। 95। राइट। सर इसमें क्वेश्चन ये था सर, इसमें अलग अलग जैसे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अलग बिजनेस करती है और फिर आरती इंडस्ट्रीज जो नंबर 2 पे है वो अलग बिजनेस करती है, तो सर सामने में अपने को सर फिर कौन सा अपन कंपनी चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रोथ? किस चीज के लिए चूज करेंगे? सर जैसे अपन सामने में अपने को शीट बनाना है सर, जैसे अपने बनाए नंबर 1 कंपनी नंबर 2 कंपनी, राइट। तो यहाँ पे सर इनका अलग अलग केमिकल्स में करते हैं, लेकिन सर अलग अलग इनका मोड ऑफ ऑपरेशन है और प्रोडक्ट भी अलग बनाते हैं, राइट। ओके, बाकी राइट। देखो यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं पीडीलाइट को छोड़ के, पीडीलाइट को छोड़ के ये जो लिस्ट है कितना बड़ा है आपका, 100 कंपनियों का। हाँ। ये सब क्या बनाती है? केमिकल बनाती है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते सब अलग अलग कंपनी है। अब नाम इस सेक्टर का क्या है? स्पेशलिटी केमिकल। अकेला केमिकल नहीं है, क्या नाम है? स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल। तो ये सेक्टर का नाम ही स्पेशलिटी केमिकल है। हर कंपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, पर बनाते तो केमिकल ही है, राइट। फिर चाहे अल्काइल एमाइन हो या अतुल हो, ये दोनों ही प्रोड्यूस केमिकल करते हैं, पर दोनों का केमिकल अलग होगा। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें ये लेना देना है आपका केमिकल मोनोपोली है नहीं है। हर एक कंपनी क्लेम करेगी कि मैं जो प्रोडक्ट बनाती हूँ वो कोई और नहीं बनाता है। अभी आपके नाम ही स्पेशलिटी है तो फिर आपका केमिकल तो आपका ही होगा ना, राइट। लेकिन ये इनके क्लेम है, इनके क्लेम पे मत जाना, राइट। हमें ये देखना है कि तुम्हारी कंपनी मोनोपोली है पर वो धंधा कितना करती है। अगर तुम मोनोपोली प्रोडक्ट बनाते हो पर ये 500 करोड़ का धंधा करते हो तो तुम्हारा मार्केट बहुत छोटा है, ये हमें बहुत दूर तक नहीं पहुंचाएगा, राइट। हमें धंधा चाहिए, धंधा, बातें नहीं। तो धंधा कौन करते हैं रियल में? देखो कुछ खिलाड़ी है जो जबरदस्त धंधा करते हैं। कौन है यहाँ पे तुषार भाई? टॉप धंधा करने वाली कंपनी है इसमें से? पिडिलाइट है, फिर आरती इंडस्ट्रीज, फिर अतुल, फिर पिडिलाइट, आरती, अतुल। अब बीएसएफ का नाम सुना? नहीं सर। ये दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल की कंपनी, मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल है, 170 ईयर्स से है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, पर इंडिया में ये नंबर 1 है, राइट। लेकिन मार्केट कैप इनको उतना नहीं मिल रहा है जितना पिडिलाइट को मिल रहा है। ऐसा क्यों होगा सर? वही एमएनसी, राइट। तो एमएनसी में जो कुछ कठिनाइयां होती है वो यहाँ पे भी कठिनाइयां है, राइट। अब आप जो कह रहे थे पीडीलाइट और इन सब में डिफरेंस, वो जरूर है, क्योंकि पीडीलाइट जो फेविकोल बनाता है वो फेविकोल क्या है तुषार भाई? तो एडिटिव सब्सटेंस है, दैट इज आल्सो केमिकल, है ना। पर पीडीलाइट ने एक चीज सीखी, उसने ये सीखा कि मेरे को खाली केमिकल नहीं बेचना है, मेरे को केमिकल को ब्रांड में कन्वर्ट करके बेचना है, राइट। क्योंकि अगर मैं केमिकल ही बेचूंगा तो कल ये सेम केमिकल दूसरा कोई भी बना सकता है और मेरा मार्केट कम हो सकता है। लेकिन आपके एडहेसिव तो बहुत आएंगे बाजार में, पर फेविकॉल एक ही है। तो ब्रांड इज ब्रांड। जो कंपनियां ब्रांड बनाती है, ब्रांड वर्किंग पे काम करती है, दोज आर अमेजिंग कंपनीज। ये सब नहीं कर सकते। तो कुछ कंपनियां सिर्फ केमिकल बनाएगी, कुछ कंपनियां क्या बनाएगी? ब्रांड, राइट। जब अच्छी डिमांड होती है तुषार भाई, जब अच्छा डिमांड होता है केमिकल का तो सबके धंधे बढ़ते हैं। और जब कल बुरे समय आएंगे तब का भी सोचना है कि बुरे समय में ब्रांड चलेगी कि प्रोडक्ट चलेगी, राइट। तो ये पूरा कंपेरेबल आपका सेक्टर है। प्रॉपरली आपने उसको सारी कंपनी के टर्नओवर को गिना है तो इट्स गुड, राइट। और 7% का इनका ग्रोथ है, या ये इंडिया के हिसाब से ही चल रहा है।
सर फ्लोरोकेम के राइट साइड में सर 2017 सर ऊपर एक क्वेरी लिखा है मैंने उस पे या कहिए बॉक्स में सर उसके ऊपर लिखा है नो नॉट फाउंड इन रिजल्ट एनुअल रिमोट वेल टू फाउंड। तो फ्लोरोकोम का कोई डेटा आपको नहीं मिला। यस सर बराबर है। देखो तो डेटा जब भी हमको ढूंढना है सबसे पहला हम कहाँ पे ढूंढेंगे, हम ये एक सिस्टम होना चाहिए हमारा। हम सबसे पहले प्रयास करेंगे बीएससी इंडिया पे ढूंढने का। अब आपने बोला कि यहाँ पे कोई डेटा मिला नहीं। दूसरी कौन सी जगह है, एनुअल रिपोर्ट ऑन बीएससी इंडिया, राइट। अब हो सकता है वो भी ना मिले। ये कौन से केस में नहीं मिलेंगे, न्यू लिस्टेड कंपनी, या तो न्यू लिस्टेड होती है या तो फिर कोई और कंपनी में से डीमर्ज होके बाहर आई होती है, राइट। कोई और कंपनी में से डीमर्ज होके बाहर आएगी तो इनकी इंडिविजुअल रिपोर्ट हमें नहीं मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिल पाएंगे, राइट। लिस्टेड अगर नई हुई है तो हम नई लिस्टेड कंपनियों का डेटा कैसे देखेंगे, RH। जब भी कंपनी लिस्ट होती है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते हैं, उसमें से हमें मिल जाएगा, राइट। तो RHP जब भी कंपनी आएगी तब वो देगी, राइट। हमने अब भी जस्ट देखा कैसे एप्पल का हमने प्री IPO सेल्स देखना था, वो चेक किया हमने। तो इन द सेम वे हम लोग वैसे भी डेटा को देख सकते हैं, पर डीमर्ज हुई है आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो फ्लोरोकोम का भी वही हाल है, वो एक डीमर्ज कंपनी है तो आपको उनके सेल्स के डेटा मिलेंगे तुषार भाई? नहीं मिलेंगे तो जाने दो, नो प्रॉब्लम, राइट। बाकी कंपनियों के किए है, खाली एक कंपनी से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ओके या सर और एक अच्छा क्वेश्चन काम था। किया आपने, वंडरफुल। थैंक यू सर। सर एक डिफरेंट क्वेश्चन था। यस सर एक कैटलॉग, सर कैटलॉग करके एक सेक्टर है उसमें। हाँ, इंटरनेट कैटलॉग इंडस्ट्री, राइट। सर उसमें ओपन किया था मैंने, ये सर इस पे तो मैंने काम नहीं किया, लेकिन उसको ओपन किया था। तो उसमें सर जोमेटो जो है उसका सेल्स सर उसका एकदम हाई वैल्यूएशन है, बराबर है, प्रॉफिट नेगेटिव है सर। इसमें कंसीडर करेंगे सर इसको या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, देखो हम अभी क्या ढूंढ रहे हैं, ग्रोथ, राइट। तो जोमेटो का ग्रोथ है कि नहीं है सर? कैसा ग्रोथ है ये? सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब जोमेटो में ताकत है हर साल डबल धंधा करने की, ह्यूज ग्रोथ कर रहे हैं लोग। तो ग्रोथ का मतलब धंधा जब बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आएगी, वो तो इनके हाथ में है। अभी अगर ये 2500 करोड़ का धंधा कर रहे तुषार भाई, ये 1500 करोड़ तो मार्केटिंग पे फेंकते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगले साल हम 4000 करोड़ पहुंचे। तो ये भी दूसरी कंपनियों की तरह इसी साल प्रॉफिट में आ सकती है। वो 1500 करोड़ मार्केटिंग निकाल दो, सीधा प्रॉफिट, राइट। तो ये मत सोचो कि ये भी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इन्वेस्टर जानता है कि ये जबरदस्त धंधा बड़ा कर रही है। तो सबसे बड़ा धंधा करने वाली कंपनी कौन है इंटरनेट में? जोमेटो। अब जब जोमेटो बच्चा था तब पैसा किसने डाला था जोमेटो में? जोमेटो के प्रमोटर के पास आइडिया थी, पैसे नहीं थे ये एडवर्टाइजमेंट पे खरीदने के। तो इनको पैसे किसने दिए जोमेटो को? या ये Naukri.com ने दिए। और देखो आज वही Naukri.com से भी बड़ी जोमेटो बन गई है ना। तो बेटा बाप से आगे निकल गया, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे Naukri.com का टर्नओवर है अभी भी 1000 करोड़, पर जो उसका बेटा है जिसमें उसका 15% स्टेक अभी है, राइट। तो इनिशियली फंडिंग Naukri.com का बढ़िया था जोमेटो में, और आज वो जोमेटो 2000 करोड़ करने लगी। तो Naukri.com की यही खूबी है, उसने ऐसी कई कंपनियों में पैसा डाला है, राइट। 2-3 महीने में हम पॉलिसी बाजार भी देखेंगे, उसमें भी फंडिंग Naukri.com का है। तो बहुत बढ़िया देखने को सीखने को मिलेगा। जस्ट अब सबको क्या करना है, एक दूसरे के डेटा चेक करने, राइट। कुछ एरर हो तो वो एरर भी बतानी है कि दोस्त यहाँ पे कुछ गलती लग रही है, राइट। लेकिन ये डेटा हमें क्या कहता है? बिगेस्ट कंपनी इज जोमेटो एंड Naukri.com, राइट। कार ट्रेड जब अभी IPO आया, धंधा बहुत छोटा है, कंपनी अच्छी है, बट इन दोनों के मुकाबले ये नहीं आएगा, राइट। अगर हम ग्रोथ देखें 56% ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ कैसा हुआ, क्या कहते हो आप लोग?
अच्छा ग्रोथ है कि एवरेज ग्रोथ है? सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। तो ये ऐसा ग्रोथ होगा वो उस कंपनियों को मार्केट कैप मिलने ही वाला है, राइट? यूं ही नहीं जोमेटो का मार्केट कैप लाख करोड़ का हुआ, बराबर। पर इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम और डेप्थ पे जाएंगे, राइट फ्रेंड्स? अभी का मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों को, काइंडली कंप्लीट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, एक सेक्टर बाकी नहीं रहना चाहिए, हमें पूरा इंडिया देखना है, राइट? तो मैं नेक्स्ट वीक यानी कल से कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, जो नए नहीं होंगे वो सिर्फ आपको जो तकलीफ हो रही है रिसर्च में उसको और इजी करने के लिए होंगे, राइट? तो और थोड़ी कुछ हम लोग लर्निंग लेते हैं और पूरा इंडिया, अगले बुधवार को जब हम मिलेंगे तब हमें एकदम पक्का आंसर चाहिए, इंडिया में कौन बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है, दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंडिया, दिस सम ऑफ द सेक्टर्स आर डी ग्रोइंग। देखो अब ये सेक्टर कैसे है? ये डिकेइंग सेक्टर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, इट्स एब्सोल्युटली डिकेइंग सेक्टर। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर हो, सिगरेट हो, ट्रैवल सपोर्ट सर्विसेज हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो, कंटेनर पैकेजिंग हो, आईटी ट्रेनिंग, दिस ऑल आर द सेक्टर्स व्हिच आर नॉट ग्रोइंग गुड, राइट? तो travel amazing supporting sector, sector, so I think it is growing. For some reason it is not appearing. Is that is a different story. नहीं, अगर यहाँ पे 3% डिग्रोथ है तो आप इसको खोल के जब देखोगे और कंपनियों के धंधे देखोगे तो आपको उसका रियल चित्र पता चलेगा, राइट? अभी अगर IRCTC चल रहा है तो हम बोलेंगे नहीं इट इज ग्रोइंग, ऐसा नहीं चलेगा। IRCTC के बारे में बता रहे सर, या प्रॉपर डेटा चाहिए। अगर ट्रैवल सपोर्ट का ग्रोथ नहीं है या है तो अंदर इसमें डेप्थ में जाके देख लेना कि है कि नहीं रियल ग्रोथ, राइट? तो अभी हम इस पे कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे, बट नेक्स्ट वीक मैं चाहूंगा जब अगले बुधवार को मिले तो डायरेक्टली हम जंप कर सके कि विच सेक्टर्स आर ग्रोइंग इन इंडिया एंड विच सेक्टर आर नॉट ग्रोइंग इन इंडिया, ताकि हमें पता चले वेयर वी नीड टू फोकस और किधर कुछ प्रॉब्लम है। We can see which sector were growing and which are growing in current trend also. Post corona भी ये कुछ सेक्टर है जो बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, राइट? तुषार भाई यहाँ पे जो आपने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में काम किया है, यहाँ पे एक एरर है, आपने L&T को लिया ही नहीं, राइट? तो थोड़ा ये देख लेना तुषार भाई, राइट? L&T तो सबसे बड़ा कंपनी है, ओके ओके सर, या सो यस राजेंद्र भाई। सर आज एकदम मोड में आए। Yeah, actually, if you go to commercial vehicle. Yeah, commercial vehicle, okay. Yes. Yeah, open that. In Tata Motor DVR, अच्छा नहीं राजेंद्र भाई क्या करने का, इसको डिलीट कर दो टाटा मोटर डीवीआर को, दिस इज नॉट अ कंपनी, डिलीट। बिकॉज अभी जो मैं लास्ट ईयर का उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखा, इसके अंदर सिर्फ स्टैंड अलोन ही था, वो कंसोलिडेटेड वो ऑप्शन ही नहीं था भाई पे, कंपनी नहीं है राजेंद्र भाई। टाटा मोटर डीवीआर तो जो वो में जो उनका जो यूके का जो बिजनेस था वो उसमें हो रहा था, तो लेकिन मतलब यहाँ पे इट वाज अपीयरिंग, तो मैंने उसमें क्या करने का है, राइट। और ये टाटा मोटर का भी जीडीपी गलत, मार्केट कैप गलत है या रियल मार्केट कैप लिख देना पड़ेगा आपको मैन्युअली। टाटा मोटर परमानेंट एरर, ओके ओके विल डू दैट, या श्योर, ओके। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एंड स्टिल ओके। बंकिम भाई का क्वेरी है क्या? बंकिम भाई हाँ जी, एक क्वेरी है सर। तो लास्ट क्वेरी या कहिए। हाँ जी, तो थोड़ा सर ये थोड़ा स्प्रेडशीट के बारे में है, रिक्वेस्ट टू एवरी, या कहिए बंकिम भाई, अभी कहिए आप। हाँ जी, स्प्रेडशीट के अंदर चार्ट को जो इंस्टॉल करते हैं हम, हाँ, तो चार्ट को इंस्टॉल करने के बाद जो अलग अलग डिवीजन पड़ता है उसमें जो अपने कंपनी का नाम ऐड करते हैं, जैसे कि एस्कॉर्ट है, अशोक लेलैंड है, तो वो कैसे नाम कैसे ऐड करना है सर? अच्छा, वो हम चार्ट भी सीखेंगे, उसका भी एक अपना एपिसोड है जिसमें सारे चार्ट बनाना मैं सिखाऊंगा। ओके ओके ओके, तो उसको तब तक के लिए हम पोस्टपोन करते हैं, राइट।
ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ वी विल मीट नेक्स्ट वीक along with everyone's homework। इसके बाकी है सारी इंडस्ट्री को खत्म कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। बाय सर। बाय सर, जय हिंद।